पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रॉम बेसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बेटा चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जिसे हमें डिस्कस करना है। ये टर्मिनोलॉजीज विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ बेटर वे। तो बेटा सबसे पहले क्या है चैप्टर का नाम? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या इसे हम जेनेटिक्स पार्ट 1 भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेटा जेनेटिक्स ही पता होना चाहिए। What does this genetics stands for? So this genetics basically is a branch of science that deals with the principles of inheritance and variation. ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था, the father of classical genetics is known as Mendel, Gregor Johann Mendel। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई, नए साइंटिस्ट आए, नई डिस्कवरीज हुई, and with time father of genetics from classical to modern became Bateson, and Morgan is known as father of experimental genetics। तो सबसे पहले आप बेटा यहाँ पे genetics की ही definition लिख लो। So genetics is basically the branch of science that deals with the principle, that deals with the pattern of inheritance and variation, pattern of inheritance and variation। ठीक, so who's known as the father of genetics? Gregor Johann Mendel, G.J. Mendel, right? Now beta, see, genetics means dealing in with heredity and inheritance। So basically when what is being transferred, what are the heredity units that are being transferred from the parent to the offspring? So that is genes। Now next thing you have to understand is about genes। The term gene was given by Johansson। So genes are basically the units which are inherited from the parents to their offspring. These are the heredity units. Genes are the heredity units। First point, chemically genes represent DNA। So next you can also write for genes that chemically they represent DNA, correct, deoxyribonucleic acid। Now beta, genes are basically located on a chromosome, and every gene has their specific location on the chromosome called locus, correct, and this is fixed for every species। And in a pair of homologous chromosome, every gene is represented by a pair of allele present on the same locus of the homologous chromosome, and it is constant for every species, right? So next point that you will write over here is location of gene on chromosome। Location of gene on chromosome is fixed, and that is called as locus। So suppose this is my chromosome, this is the chromosome which is carrying the genes which are representing DNA, and these are the only heredity units which you receive from your parents during sexual reproduction, right? Isn't it? So now on these chromosomes beta, genes are located। So these are the genes। Now usually there is a pair of homologous chromosome in a diploid cell, and as I told you that every gene is represented by a pair of allele। So this is gene, these two are the alleles of the gene। The alternating form of a gene is known as allele। So alleles of the gene, and suppose this is locus 1, so now this becomes locus 2, this is locus 3, locus 4, and locus 5। So every position of the gene is fixed, and that position is known as locus, correct? Got my point everyone? So now next point you will write over here is for allele। Write the definition of allele as well। Alleles beta, they represent the alternating form of a gene। They represent alternating forms of a gene। First point, now in a diploid cell one gene will be represented by two alleles only। एक diploid organism में, एक diploid cell में एक gene के दो ही allele possible है, पर अगर मैं population की बात करूं तो भाई population में एक gene के दो से ज्यादा भी allele हो सकते हैं। In that case this situation is known as multiple allelism। अगला क्या point लिखोगे? In a diploid cell, diploid cell में बेटा, in a diploid cell a gene is represented by pair of allele, पर ये हो सकता है however in a population a gene can be represented by more than two allele। However in a population it can be more than two। और अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को बेटा क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। बेस्ट एग्जांपल अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, दैट इज योर ओन ब्लड ग्रुप। हमारा ब्लड ग्रुप जो है उसे आई जीन कंट्रोल करती है, और इस आई जीन के दो से ज्यादा मतलब तीन अलील है, तो ये कंडीशन कैसी होगी? मल्टीपल अलीलिज्म की होगी। ठीक है, अब मैं आपको अलील और जीन एक एग्जांपल के रूप में समझाऊंगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द अलील्स ऑफ अ जीन हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दैट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड यस हेटेरोजाइगस। बेटा होमो का क्या मतलब होता है? जब दोनों ही अलील ऑफ अ जीन सेम हो। जैसे मान लो मेरे पास एक जीन है टी, कौन सा जीन मैंने कंसीडर किया? टी जीन कंसीडर किया। अब मान लो इसके दो अलील्स पॉसिबल हैं, वन इज कैपिटल टी, अनदर इज स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो गए? दीज आर द अलील्स ऑफ टी जीन। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? अब ये दोनों अलील का क्या कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म या दो टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। होमो मतलब सेम, जब बेटा दोनों अलील ऑफ द जीन सेम हो, दैट मींस व्हाट इज होमोजाइगस? व्हेन both the alleles of a gene are same। मतलब या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। ठीक है, यहां दोनों में हमने होमोजाइगस कंडीशन दी है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है तो दूसरी होमोजाइगस डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस का बेटा क्या मतलब हुआ? हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो जब दोनों ही allele of the gene within a diploid cell are different तो क्या कंडीशन हो जाएगी? ये कंडीशन हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो एक ही डिप्लॉइड सेल के अंदर बेटा जीन टी के दो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट है ऑन द सेम लोकस। तो इस हिसाब से हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, दो टाइप की अरेंजमेंट ऑफ द जीन हो सकती है, आइदर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। करेक्ट? यहां तक सारी सबको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होगी कि जेनेटिक्स क्या है, जीन क्या है, अलील, मल्टीपल अलीलिज्म, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट, दैट इज टू मोर टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू डिस्कस बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन चैप्टर, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप बेटा क्या होता है? बहुत आसान सी चीजें हैं, 10th 12th में वैसे भी हम सारी चीजें पढ़ते होते हैं। जीनोटाइप का बेटा मतलब होता है जेनेटिक अरेंजमेंट। अभी आपने देखा कि मान लो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पे मान लो मेरा ये जीन प्रेजेंट है, ऐसे मान लो ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है? तो अब द अरेंजमेंट ऑफ द जीन, दैट व्हाट आर द अलील्स प्रेजेंट, प्रॉपर जब अलील और हम जीन के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अब उस जीनोटाइप की वजह से जो इंसान का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस बनेगा उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या है देखो, यहां पर होता क्या है बेटा, टी जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू अलील, जो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं इसे तो बेटा हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, द अलील व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ अंडर ऑल सिचुएशंस, आइदर इन होमोजाइगस डोमिनेंट और इन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। जबकि दूसरा है हमारे पास रेसेसिव अलील, द अलील व्हिच नेवर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। रेसेसिव अलील बेटा काम नहीं कर सकता, ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता और ये किसी भी मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब हमारे पास तीन सिचुएशंस है, वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट, देन आइदर होमोजाइगस रेसेसिव, और अगर हम हेटेरोजाइगस सिचुएशन बनाते हैं तो वन डोमिनेंट अलील सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव। सप्रेस क्या, वैसे रेसेसिव अलील ने काम नहीं करना है, तो डोमिनेंट अलील अकेला भी अपना काम करेगा एंड विल ब्रिंग, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अरेंजमेंट। दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अरेंजमेंट, ठीक है? तो ये जो चीज हमने रिप्रेजेंट की है यहाँ पे, ये जो चीज है बेटा, दिस इज नोन एज जीनोटाइप, इसे बेटा हम जीनोटाइप कहते हैं। सो जीनोटाइप इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द अलील्स ऑफ अ जीन, कैसे अलील्स अरेंज्ड है। अब इसके बेसिस पे जो फिनोटाइप आएगा, सो फिनोटाइप मींस मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस व्हिच कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोटाइप। तो यहाँ पे भाई ऑर्गेनिज्म टॉल हो जाएगा, यहाँ पे तो डुऑफ रह जाएगा एंड तीसरे कंडीशन में भी टॉल बनेगा। सो ऑल दीस थ्री थिंग्स आर डिनोटिंग द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या डिनोट कर रहा है ये बेटा? ये डिनोट कर रहा है फिनोटाइप। सो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस व्हिच इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक अरेंजमेंट। सो जीनोटाइप इज बेसिकली जेनेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ जीन, और उसके बेसिस पे जो फिनोटाइप आएगा वो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस हो जाएगा। क्लियर? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? चलो, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा मेन चैप्टर, दैट इज मेंडल्स हिस्ट्री। देखो, सबसे पहली बात बेटा हम इस पूरे चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम मेंडल ने क्या किया, कैसे उसने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन समझाया, पहले हम वो स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई मेंडल ने क्या गलतियां करी, कुछ तो भाई काम बहुत अच्छा किया, नो डाउट ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट क्या उनके काम में कोई कमी थी, क्या उनके काम में कोई फ्लॉज थे, अगर हाँ तो वो क्या, तो हम उनके कामों की कमियां देखेंगे, भाई जो उन्होंने काम किया क्या उसमें गलतियां थी, वो हम सीखेंगे। फिर हम मॉडर्न जेनेटिक्स की तरफ जाएंगे एंड लास्ट वी विल स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। करेक्ट? तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर में ये सीखेंगे कि कैसे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन फॉलो होता है, कैसे हमारे पास हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटिंग फैक्टर्स हम रिसीव करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो बेटा मेंडल ने 7 साल तक for consecutive 7 years starting from 1856 to 1863 ने करीब 7 साल तक पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे काम किया and got some results at the end which later got published in one of the, क्या कहते हैं कि his paper name was hybridization on plant experiments and इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश कराया। बट जैसे जब इनका काम पब्लिश हुआ, पीपल ऑफ दैट एरा ऑफ 1850s के जो लोग थे वो बेटा मेंडल के काम को समझने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से जब 1866 में जब मेंडल ने अपना 1865 में राजा जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश कराया पेपर में, तो पीपल डिस्कार्डेड इट एंड कंसिडर दैट दिस फेलो इज मैड, और इसने कुछ भी अपनी मनगढ़ंत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अब सोच रहा है कि इसने काम सही किया है। तो इन शॉर्ट लोगों ने इनके काम को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और बेचारे सदमे में मर भी गए। फिर 1900 में जाके जब थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आई, लोगों के दिमागों में और नई डिस्कवरीज ने जगह बनाई, तो 1900 में जाके 3 नए साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रिवाइज किया और पता लगाया कि भाई अरे मेंडल ने तो करिश्मा कर रखा था, इन्होंने बहुत अच्छा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन समझा रखा था विद द हेल्प ऑफ हिज हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, दैट इज मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, राइट? तो फिर उन्होंने उस काम को रिवाइज किया, मेंडल को उनका औहदा दिलवाया, जो वो बेचारे मर गए तो उसके बाद उनको अवार्ड्स दिए गए, ही इज वन ऑफ द नोबेल लॉरिएट एज वेल, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो मतलब फिर इनके मरने के बाद इनके काम को रिकॉग्निशन मिली इन शॉर्ट। पर काम को रिकॉग्निशन तो मिली, स्टिल कुछ काम में गलतियां भी थी, तो उन गलतियों को भी हाईलाइट किया गया। तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। इन्होंने पी पे मतलब पाइसम सटाइवम पे इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए फ्रॉम 1856 एंड कंटिन्यूड फॉर 7 इयर्स एंड देन आफ्टर व्हिच द वर्क गॉट पब्लिश्ड, बट उस समय को रिकॉग्निशन नहीं मिली। 1900 में इनके काम को रिकॉग्निशन मिली और फिर लोगों के सामने आया कि अच्छा, मेंडल वाज नॉट मैड, द पीपल ऑफ दैट एरा वर नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ मेंडल। करेक्ट? शुरू करें? तो चलो भाई शुरू करते हैं। मेंडल वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम फॉर 7 consecutive years। 7 साल तक इन्होंने पाइसम सटाइवम पे क्या काम किया? वर्क ऑन पाइसम सटाइवम फॉर 7 consecutive years। he actually performed hybridization experiment to understand the pattern of inheritance of gene। so he performed hybridization experiment in order to trace the inheritance pattern of gene।
करेक्ट. His work got recognition. Next point क्या लिखोगे? His work बेटा got recognition in 1900 when 3 scientists rediscovered his work. When 3 scientists rediscovered his work. और वो 3 साइंटिस्ट कौन थे भाई, उनका नाम आपको पता होना चाहिए. कार्ल कोरेंस, वॉन टिशनमार्क एंड थर्ड इज ह्यूगो दीवरेस, जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में भी बेटा हमें बताया. करेक्ट. Got my point everyone? So his work got recognition in 1900 when 3 scientists rediscovered his work. तो हम शुरू करते हैं मेंडल ने क्या किया और क्यों भाई लोगों को नहीं लगा कि इन्होंने सही काम किया, क्यों फिर आगे जाके जब लोग नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसके काम को रिवाइज किया तब देन दे रियलाइज किया अच्छा भाई ये तो महान व्यक्ति था. चलो तो शुरू करते हैं बेटा. सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था फॉर परफॉर्मिंग हिज मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. These 7 characters were controlled by 7 different genes located on 7 pair of homologous chromosome. और वो 7 कैरेक्टर क्या थे एक एक करके जरा उसके बारे में लिख लेते हैं. He chose 7 characters of P controlled by 7 genes located on 7 pair of, देखो 7 कितना लकी नंबर है, 7 साल तक काम किया, 7 कैरेक्टर को चूज किया, located on 7 different homologous chromosome. So lucky number of Mendel was 7, right? 7 pair of homologous chromosome. Correct. Each character is represented by 2 pure line बेटा. हर कैरेक्टर का एक homozygous dominant होगा और एक homozygous recessive होगा. तो आप कह सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में that बेटा each character is represented by a pair of pure line. Pure line means homozygous condition. और 2 homozygous condition possible है, एक dominant में एक recessive में. So they are represented by a pair of pure lines. कौन सी वो 2 pure line है? एक है बेटा homozygous dominant और दूसरी है homozygous recessive. ठीक है. तो अब 7 कैरेक्टर मतलब कितनी प्योर लाइन? 14 प्योर लाइन. Therefore 7 कैरेक्टर्स बेटा मींस 14 प्योर लाइंस, है कि नहीं? तो क्या देखिए कौन से 7 कैरेक्टर हैं और कौन से वो 14 प्योर लाइन है. एक बार आप ये जान लोगे, ये सीख लोगे, तब हम शुरू करेंगे मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को. चलो तो सबसे पहले आते हैं भाई, एक पेज ऐड कर लेते हैं. अब हम ड्रॉ करने वाले हैं मेंडल के 7 कैरेक्टर्स एंड 14 प्योर लाइन. तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स लिखूंगी. करेक्ट. Here I'll write the one of the pure line that is dominant pure line and here I'll be writing about the recessive pure line. ठीक है. Got my point everyone? चलो तो सबसे पहला कैरेक्टर इन्होंने चूज किया था बेटा हाइट ऑफ द प्लांट which is controlled by gene T. तो 2 सिचुएशन है भाई, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t. फिनोटाइप क्या होगा? टॉल, ड्वार्फ. करेक्ट. यस और नो? ओके. फिर इन्होंने बेटा दूसरा कैरेक्टर कौन सा चूज किया? द सेकंड कैरेक्टर ही चोज वाज सीड शेप. द सेकंड कैरेक्टर चोजन बाय हिम इज सीड शेप. करेक्ट. इसके 2 फिनोटाइप्स हैं, वन इज राउंड, वन इज रिंकल्ड. राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रेसेसिव. थर्ड, सीड कलर. डोमिनेंट इज ग्रीन, recessive, dominant is yellow and recessive is green. Next, flower color. फूल का क्या रंग होगा? तो 2 फूल के रंग देखे थे भाई इन्होंने, वायलेट डोमिनेंट, अगर व्हाइट फ्लावर है तो वो रेसेसिव फीचर है. फिर फूल की पोजीशन क्या है? टर्मिनल है या एक्सिलरी है? सो फिफ्थ कैरेक्टर वाज पोजीशन ऑफ द फ्लावर. एक्सिलरी मतलब डोमिनेंट और टर्मिनल है तो मतलब रेसेसिव कैरेक्टर. ठीक है. फिर 5 हो गए, 2 और बचे हैं. पॉड शेप. पॉड मतलब मटर का जो छिलका होता है. पॉड शेप अगर प्रॉपर इन्फ्लेटेड है, अगर सुंदर सा है तो दैट्स अ डोमिनेंट फीचर, और अगर एकदम ही मरगिल्ला सा है मतलब कंस्ट्रिक्टेड, रेसेसिव फीचर. एंड लास्ट इज पॉड कलर. सो ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव. करेक्ट. देख लो भाई 7 कैरेक्टर हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर स्टडीड बाय मेंडल? 7. व्हाट आर दोस? स्टेम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप एंड पॉड कलर. और ये हो गए इनके 14 प्योर लाइन. अब हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेटा क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम 2 प्लांट के बीच में क्रॉस बनवाएंगे कंसीडरिंग 1 जीन गेटिंग इनहेरिटेड एट अ टाइम. तो मोनो का मतलब होता है 1 जीन. सो व्हेन वी आर स्टडीइंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, तो उसे बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्या है हमारा बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर. ठीक है. कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर. यहां तक बात समझ में आई सबके? चलो तो यहां पर हम जो जीन ले रहे हैं दैट इज टी जीन. ठीक. और टी जीन क्या कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ द प्लांट. तो यहाँ पे अगर हम टी जीन को लेते हैं, सबसे पहले जब भी हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द पेरेंट फ्रॉम द जर्म प्लाज्म. और पेरेंट हमेशा प्योर लाइन चूज करते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव फॉर द गिवन कैरेक्टर. ठीक है. ये भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें सारी चीजें बता रखी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? So step number 1 is selection of
होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट। तो मान लो भाई मैंने हाइट के लिए चूज किया है, तो एक पेरेंट मेरा भाई मुझे बड़ा सा दिखाई देगा, उसका जीनोटाइप, so this is the parent whose genotype is homozygous dominant and this is the parent whose genotype is short, means genotype is dwarf, dwarf means, ठीक है। अब हमने पेरेंट चूज कर लिए है बेटा, अब हमें इनका क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। तो गैमीट्स बनाने का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फॉर्म गैमीट्स? एक बार गैमीट फॉर्मेशन देख लो कैसे करते हैं, ताकि हम आगे अपनी चीजों को बढ़ा सकें। तो बेटा गैमीट फॉर्मेशन का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, where n stands for degree of heterozygosity, n stands for degree of हेट्रोजाइगोसिटी, मतलब जितने जीन हेट्रोजाइगस स्टेट में होंगे आप उन्हीं को n की वैल्यू में बेटा काउंट करोगे। तो मान लो अगर मैंने आपको एक कंडीशन दे दी, यहाँ पे 3 जीन मैंने आपको दे दिए और आप देख सकते हो कि 2 जीन हेट्रोजाइगस स्टेट में है, पर जो C जीन है दैट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट। तो होमोजाइगस जीन की काउंटिंग हम n में नहीं करते। तो 3 जीन में से कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2। तो ये 2 हेट्रोजाइगस हैं, तो ये n की वैल्यू क्या बना देंगे? 2। और अब 2 रख दो भाई, फॉर्मूला इज 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितने टोटल हमें गैमीट्स मिलेंगे? 4 गैमीट्स। अब वो 4 गैमीट्स कौन से होंगे, कैसे गैमीट बनाते हैं वो भी देख लो। नंबर ऑफ गैमीट तो निकालोगे इस फॉर्मूले से, डिग्री ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी से। अब वो कैसे 4 वो गैमीट है कौन से, तो देखो क्या करोगे बेटा, इस तरीके से जीन्स को इस तरीके से ब्रेक करके लिखोगे, इसे कहते हैं ट्री ब्रांचिंग मेथड। अब सी हर बी के नीचे लिखोगे। आ रहा है समझ में सबको? सो दिस इज द वे हाउ यू राइट द, यू मेक द ट्री चार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो पहला जो हमारा गैमीट है वो तो ये रहा, ए बी सी। जो दूसरा हमारा गैमीट है बेटा वो तो ये रहा, ए बी सी। तो ये देखो ये दोनों एक जैसे, तो उसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा गैमीट हमारा ये रहा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अब देखोगे चौथा भी बेटा वही बन रहा है, फोर्थ गैमीट इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम एज द थर्ड वन। तो एक बार लिख लोगे कोई बात नहीं है, इसकी भी यहाँ पे हटा दो। तो एक गैमीट ये हो गया, दूसरा गैमीट ये हो गया। अब आओ तीसरा गैमीट बनाते हैं, दिस इज द थर्ड गैमीट, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब अगला गैमीट बनाते हैं, ये तो फिर वही हो गया यार, तो एक ही बार लिख दिया बहुत है, लास्ट। सो नाउ द फोर्थ गैमीट इज स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। तो ये हो गया हमारे 4 टाइप के गैमीट, ये वाला फिर से वही बनेगा। तो कितने गैमीट बनते हैं इस अरेंजमेंट ऑफ जीन पे? 4। कौन कौन से? 1 2 3 4। तो इस तरीके से बेटा आप गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। बस आपको याद रखना है फॉर्मूला, दैट इज 2 की पावर n, where n stands for degree of heterozygosity। आपको n में वही वाले जीन काउंट करने हैं जो हेट्रोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है, होमोजाइगस वाले काउंटिंग में नहीं आएंगे। आपको नंबर पता चल जाएगा और फिर ये ट्री ब्रांचिंग मेथड से बेटा आप गैमीट का फॉर्मेशन करोगे। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अपने वापस से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें क्या कहता है? सबसे पहला क्या करना है, जीन सेलेक्ट करना है जिसके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हमें स्टडी करना है। जीन हमने सेलेक्ट कर लिया T, व्हिच इज कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। फिर पेरेंट चूज करना है। पेरेंट कैसे पेरेंट होंगे? दोनों ही पेरेंट हमारे होमोजाइगस प्योर लाइन पेरेंट होंगे, कोई एक डोमिनेंट होगा कोई एक रेसेसिव होगा। तो मान लो ये मेरा मेल पेरेंट है और ये मेरा फीमेल पेरेंट है, तो मेल पेरेंट के हम पोलिन ग्रेन्स लेंगे, फीमेल पेरेंट के हम एग लेंगे, ठीक। फर्टिलाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ पोलिन ग्रेन, एक्सचेंज ऑफ मेल गैमीट सो दैट न्यू ऑफस्प्रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। अब सबसे पहले गैमीट्स बना दो भाई, ये जो डिप्लॉयड पेरेंट है, तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है जीन का। कैसा कंडीशन है? होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एक ही जीन है वो भी होमोजाइगस स्टेट में है, तो n वैल्यू बिकम 0। सो 2 की पावर 0 मतलब एक ही गैमीट बनेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी गैमीट। यहाँ पर यही गैमीट बनेगा। अब हर बार जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, सो ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल अपीयर टॉल। यस और नो? ऑल ऑफस्प्रिंग्स अपीयर टॉल, सारे ही बेटा ऑफस्प्रिंग यहाँ पे टॉल बनेंगे। क्यों? क्या जीनोटाइप आ रहा है F1 जनरेशन का? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट सिचुएशन आएगी, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे टॉल अपीयर करेंगे। सो मेंडल को एक चिंता हो गई कि यार मैंने पेरेंट तो जो मम्मी पापा लिए, पापा टॉल मम्मी डुअफ, जो बच्चे बन रहे हैं मान लो 100 बच्चे बने, 100 के 100 लंबे हो गए, कोई भी एक भी बच्चा माँ का कैरेक्टर लेके नहीं आया, कोई भी बच्चा डुअफ फीचर का नहीं आया। तो मेंडल को लगा कि यार क्या मम्मी के कैरेक्टर पास ही नहीं हो रहे हैं क्या जनरेशन में, कैसे पापा के कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर मेंडल ने अगले स्टेप में क्या करा? परफॉर्म सेल्फिंग इन F1 जनरेशन, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, सेल्फ क्रॉस कराया F1 जनरेशन का। तो कहीं ना कहीं फिर क्या किया भाई? अब देखो मेरे F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स कैसे थे? सारे के सारे टॉल थे। क्या जीनोटाइप था? दिस। तो इनका आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक। अब जब क्रॉस कराया तो मतलब क्रॉस क्या? हाइब्रिडाइजेशन कराई, फिर पहले गैमीट्स बनाओगे। तो अब देखो यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, हम F2 जनरेशन के गैमीट्स बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस स्टेट में, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 2 की पावर 1, 2 गैमीट बनेंगे। कौन से वो 2 गैमीट होंगे बेटा? ये से बनेंगे, ये वाले से बनेंगे। So these are the gametes of F2 generation। अब हम इन गैमीट से जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मतलब ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन करेंगे। तो ये पनेट स्क्वायर है और इस पनेट स्क्वायर के अंदर हम सारे गैमीट्स लिखेंगे एंड देन फिर वी आर गोइंग टू फिल दिस डब्बा और क्या ऑब्टेन करेंगे बेटा? ऑफस्प्रिंग्स का पैटर्न, ठीक। तो आखिर में मेंडल को फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? फिनोटिपिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मिला? ये देखो, मान लो यहाँ पर 100 ऑफस्प्रिंग है, मान लो, ठीक। सपोज देयर आर 100 ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड एट F2 जनरेशन, तो 75 मतलब 3:1 का रेशियो आया। इसमें से 75 ऑफस्प्रिंग तो टॉल थे और सिर्फ 25 ऑफस्प्रिंग डुऑफ थे। करेक्ट? सो द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस केम टू F3:1 एंड हियर इज द प्रूफ। अब फिनोटाइपिक के बाद मेंडल बेटा जीनोटाइपिक रेशियो जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? ये जीनोटाइपिक रेशियो जानना चाहता था। तो इसको ये जो डुऑफ फीचर है ना, ये
इसका तो इसको जीनोटाइप पता था। ये जो 100 में से जो 25 ऑफस्प्रिंग है जो कि डुऑफ आ रहे हैं, उनका तो जीनोटाइप पता ही है भाई। डुऑफ तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, होमोजाइगस रिसेसिव। पर ये जो 75 टॉल प्लांट्स थे, इनके दो जीनोटाइप पॉसिबल हैं, एक तो ये और दूसरा ये। आइदर दे कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। हमें इन 75 ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप जानना है और इसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे? टेस्ट क्रॉस। सो नाउ टू नो द जीनोटाइप बेटा, वी आर गोइंग टू परफॉर्म टू कैलकुलेट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हमें जीनोटाइप कैलकुलेट करना है ऑर्गेनिज्म का, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर? टू कैलकुलेट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म बेटा टेस्ट क्रॉस। क्या है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि भाई जिस ऑफस्प्रिंग का तुम्हें जीनोटाइप जानना है उसका क्रॉस बनवाओ विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप। और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो तुम्हारे 75 अननोन ऑफस्प्रिंग है, अब क्या करना है? जो हमारे 75 अननोन ऑफस्प्रिंग्स हैं जिनका हमें जीनोटाइप नहीं पता, फिनोटाइप पता है टॉल है, लेकिन जीनोटाइप नहीं पता कि भाई क्यों टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से टॉल है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की वजह से टॉल है। तो हमें वो वाला कैरेक्टर बेटा जानना है। सो टू कैलकुलेट दी 75 अननोन ऑफस्प्रिंग्स का हमें अगर जीनोटाइप जानना है तो हम किससे क्रॉस कराएंगे बेटा? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंटल टाइप से, ठीक, जो कि क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये जो 75 अननोन ऑफस्प्रिंग्स है बेटा, उसमें से दो ही चीज पॉसिबल है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो मान लो कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे जो कि टेस्ट क्रॉस कर रहे होंगे, और कुछ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे जो कि टेस्ट क्रॉस कर रहे होंगे, राइट। तो पता क्या चला भाई मेंडल को, जब उन्होंने ऐसा क्रॉस हुआ तो उन्होंने देखा कि 75 में से 25 ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जिनके फर्दर क्रॉस कराने के बाद सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल आ रहे हैं, और 50 ऑफस्प्रिंग्स ऐसे थे आउट ऑफ 75 जिनका क्रॉस कराने के बाद रेशियो 1:1 था, टॉल इज टू डुऑफ। कैसे भाई भला? देखो ध्यान से देखो, अगर ये मेरा जीनोटाइप है तो यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे? कैपिटल टी कैप स्मॉल टी। यहाँ तो एक ही गैमीट आएगा, तो ये क्रॉस बन जाएगा, है कि नहीं? तो देखो 1:1 का रेशियो हो गया। यहाँ क्या होगा? यहाँ एक ही गैमीट, ये भी एक ही गैमीट। जब क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएंगे? टॉल आएंगे। तो मतलब 75 को हमने कैसे डिवाइड किया? 25-50, मतलब 1:2:1 में। तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा भाई? ये वाले हमारे 25 आए, ये तो पहले से क्लियर है 25 है भाई, और ये बीच वाले जो है ये 50 ऐसे ऑफस्प्रिंग्स थे, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। आपके सामने भी रिजल्ट है, देख सकते हो भाई खुद भी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो टेस्ट क्रॉस की मदद से भी बेटा हमें पता चलता है that the genotypic ratio of monohybrids cross for one gene by Mendel is 1:1, whereas phenotypic ratio is 3:1। तो भाई मेंडल ने जब पूरा वन पैटर्न ऑफ जीन इनहेरिटेंस पढ़ा तो बढ़िया सातों कैरेक्टर के लिए बनाया, या तो हमने एक कैरेक्टर के लिए बना के खत्म कर दिया, पर मेंडल ने तो ये काम पी प्लांट पे 7 बार किया और 7 बार अलग अलग कैरेक्टर को चूज किया, कभी स्टेम हाइट, कभी फ्लावर कलर, कभी फ्लावर पोजीशन, तो हर बार उनको यही रेशियो मिल रहा था। तो उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि होना हो चाहे 7 हो चाहे 14 हो, चाहे जितने भी कैरेक्टर स्टडी करोगे आगे जाके फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो रिजल्ट हमेशा यही आएगा, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। तो उन्होंने इस बेसिस पे एक लॉ फ्रेम किया, एक नहीं बल्कि इन्होंने 2 लॉ फ्रेम किए। सबसे पहला इनका जो सबसे इंटीग्रल और बेस्ट लॉ माना जाता है, जो यूनिवर्सल है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। तो क्या है इस लॉ में बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या सिखाता है? तो बेटा इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हमें यह पता चलता है दैट जीन कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर, जब भी वो कोई डिप्लॉयड सेल में अगर वो जीन है तो वो पेयर ऑफ अलील के फॉर्म में प्रेजेंट है, पर जब भी सेग्रीगेशन मतलब मियोसिस होगा तो दोनों ही अलील जीन के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एंड आउट ऑफ द 2 अलील्स ओनली 1 अलील विल बी रिसीव्ड बाय अ गैमीट। मतलब गैमीट को 2 में से हमेशा एक ही अलील मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई जीन ने सेग्रीगेशन नहीं किया, दोनों अलील एक गैमीट के पास चले गए और दूसरे गैमीट के पास अलील ही नहीं किया। नो। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? अ जीन during meiosis, the or you can say the alleles of a gene, the alleles of a gene segregates or separates beta independently. So the alleles of a gene segregates or separates independently from each other during meiosis such that every gamete receive 1 out of the 2 allele, so that every gamete receives 1 out of 2 alleles। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है, इस लॉ का कोई भी गलती नहीं है, दिस इज अ 100% करेक्ट लॉ, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्योंकि गैमीट्स हमेशा प्योर रहेंगे, हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, कभी कोई मिक्सिंग नहीं होगी। सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी इसको बेटा हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक और लॉ बनाया जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस लॉ में तो की मेंडल ने भर भर के गलतियां, और एक एक करके हम उन सारी गलतियों को भी पढ़ेंगे, पर पहले जान लेते हैं क्या है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है पहली बात तो दैट अ जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 2 अलील्स। जैसे कह सकते हो, पहला पॉइंट मेंडल ने कहा अ जीन कंट्रोल्स ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम।
तो सबसे पहले क्या बोला इसने, अ जीन कंट्रोल्स ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। दूसरा, अ जीन कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय टू अलील्स, चाहे फिर पॉपुलेशन हो चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो। तो मेंडल का मानना था कि एक जीन के दो ही अलील हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, पर वो तो सकते हैं ना। गलती की ना मेंडल ने यहाँ पे, अ जीन कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय a pair of allele in both individual and population। तो इंडिविजुअल तो ठीक था, पर पॉपुलेशन जोड़ने की क्या जरूरत थी भाई, मल्टीपल एलिज्म तो होता ही है। फिर इन्होंने तीसरी बात क्या बोली कि जब जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में होगा, सो इफ जीन इज प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस स्टेट, तो उसमें से एक डोमिनेंट एलील होगा, दूसरा रेसेसिव एलील होगा। डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील को सप्रेस करेगा और जो भी फिनोटाइप आएगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा। तो यहां पर भी भाई मेंडल गलती कर गए। हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट का ये जरूरी मतलब नहीं है कि हमेशा एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो सकता है भाई दोनों डोमिनेंट हो, या हो सकता है कि भाई एक अलील अकेला डोमिनेंट अलील डोमिनेंट फिनोटाइप ना बना पा रहा हो। तो ये सब मेंडल की गलती थी, राइट। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, इफ अ जीन इज बेटा present in heterozygous state, then one dominant allele out of the two, and one dominant allele will suppress the effect of another recessive allele, suppress the effect of another, right, then one dominant allele will suppress the effect of another recessive allele producing dominant phenotype, producing डोमिनेंट फिनोटाइप। क्लियर? यस। आगे भाई सबको तीनों पॉइंट समझ में, 1 2 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस के। अब एक एक करके इसके एक्सेप्शन देखते हैं। तो सबसे बेटा पहले मेंडल ने बोला कि एक जीन एक बार में एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर सकता है। देखो सबसे पहली लाइन गलती, क्यों? क्योंकि वन जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन जीन। तो दोनों तरफ से कहानी चल सकती है। तो पहले पॉइंट का एक्सेप्शन है पॉलीजीन एंड प्लियोट्रोपी। बताऊंगी क्या क्या, पहले सुनो। दूसरे पॉइंट का एक्सेप्शन तो आप जानते हो मल्टीपल एलीलिज्म, और तीसरे पॉइंट का एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 5-5 एक्सेप्शंस बन जाते हैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के, और जिसकी वजह से ये लॉ तो बिल्कुल ही फेल हो चुका था। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। तो थर्ड पॉइंट का तो भैया इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। बताऊंगी भी सारी क्या चीजें, पहले लिख लो। दूसरे पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है, मल्टीपल एलीलिज्म, है ना। और पहले पॉइंट का क्या एक्सेप्शन है भाई, इसके तो दो एक्सेप्शन बनते हैं, पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रोपी, राइट। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे सबसे पहली बार कार्ल कोरेंस ने खोजा था व्हाइल वर्किंग ऑन द फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। इन्होंने क्या देखा कि मेंडल कहते थे भाई दो ही फ्लावर कलर हो सकते हैं, एक तो डोमिनेंट एक रेसेसिव, पर कार्ल कोरेंस ने स्नैपड्रैगन में 3 रंग के फूल देखे, एक तो डोमिनेंट फ्लावर कलर था, एक तो रेसेसिव था, और एक इंटरमीडिएट फ्लावर कलर था व्हिच वाज पिंक। और वो क्यों आ रहा था, क्योंकि जब जीन when a gene was present in heterozygous state, तो जो एक डोमिनेंट एलील थी वो पूरी तरीके से डोमिनेंट फिनोटाइप लाने में असक्षम थी। सो इनकम्प्लीट मतलब डोमिनेंट एलील अकेले पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? बताती हूं अभी और, पहले लिखो। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय कार्ल कोरेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन्ड बाय कार्ल कोरेंस by working on the flower color of स्नैपड्रैगन। ठीक, तो कार्ल कोरेंस किस पे काम कर रहे थे, ही वाज वर्किंग ऑन द फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। और इन्होंने क्या 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 देखा भाई, सेम पैटर्न फॉलो किया, इन्होंने क्रॉस बनाया और इन्होंने देखो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी। सो बेसिकली द फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय आर जीन, राइट। तो बेटा कार्ल कोरेंस ने जो फ्लावर कलर चूज किया स्नैपड्रैगन का कैरेक्टर स्टडी करने में, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर आर टू डिस्टिंक्ट फीचर, टू डिस्टिंक्ट phenotype of any character, one dominant and one recessive। पर यहाँ जब फ्लावर कलर की बात आई तो यहाँ पे दो फीचर या दो डिस्टिंक्ट phenotype की जगह 3 phenotype मतलब 3 रंग के फ्लावर दिख रहे थे, some were red, some were white and some were pink। तो चलो भाई क्रॉस बना के देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये मेंडल का एक एक्सेप्शन बन गया टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सबसे पहले जो फ्लावर कलर है बेटा, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आर। फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय जीन आर। ठीक, अब इसके भाई 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव। तो जब भी हम क्रॉस बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हम पेरेंट्स लेते हैं बेटा, पेरेंट्स आर ऑलवेज प्योर लाइन, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जो पेरेंट था बेटा उसके फ्लावर कलर्स कैसे थे, रेड कलर के थे, एंड होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के फ्लावर कलर बेटा व्हाइट कलर के थे। अब क्रॉस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें F1 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे गैमीट होगा होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही गैमीट बनेगा, दैट इज डोमिनेंट R। यहाँ पे गैमीट बनेगा हैविंग रेसेसिव R। अब जब इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन करेंगे तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे, ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस। अच्छा, जब मेंडल ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम पी प्लांट पे, तो जब उन्होंने F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन किया तो उनको क्या फिनोटाइप, जीनोटाइप को भूल जाओ, फिनोटाइप क्या मिला था, फिनोटाइप वाज रिजेंबलिंग वन ऑफ द पेरेंट। जो भी होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था F1 जनरेशन का भी फिनोटाइप वही आ रहा था। तो यहाँ पे कोरेंस की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई सारे के सारे फ्लावर कलर रेड आएंगे, पर यार यहाँ तो अलग ही कहानी होगी, ना ही फ्लावर कलर रेड बना ना ही व्हाइट बना, बल्कि कोई इंटरमीडिएट कलर आ गया एंड ऑल ऑफस्प्रिंग्स अपीयर्ड टू बी पिंक कलर। अब कोरेंस तो शॉक हो गए कि भाई यहाँ तो मेंडल की थ्योरी फेल हो गई। मेंडल ने कहा था कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन विल रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट व्हिच इज होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ तो डोमिनेंट छोड़ो, रेसेसिव को भी रिजेंबल नहीं कर रहा, यहाँ तो कुछ नया ही कलर आ जा रहा है फ्लावर का। कोई बात नहीं, थोड़ी उन्होंने शांति रखी और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा उन्होंने सेल्फिंग करवा दी F1 जनरेशन की। सो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, करेक्ट। तो भाई क्या होगा,
सिंपली अब हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाएंगे. This parent will give two types of gametes. Same is the condition with the another parent. और अब हमें बनाना पड़ेगा हमारा क्या बेटा, पहले पेज ऐड कर लेते हैं एक बार या, और अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. तो गैमीट्स आपके हाथ में है, फटाफट से जरा पनेट स्क्वायर बना दो इसका. राइट, ये पनेट स्क्वायर बन गया. अब फिनोटिपिक रेशियो मेंडल ने क्या बताया था भाई, 3:1 आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, पर यहाँ फिनोटिपिक रेशियो अपीयर्ड टू बी एज 1:2:1. 25% रेड कलर के फ्लावर थे, 50% ऑफ द प्लांट्स वर हैविंग पिंक कलर्ड फ्लावर्स एंड रिमेनिंग 25% ऑफ द प्लांट्स वर हैविंग व्हाइट कलर्ड फ्लावर. जीनोटिपिक रेशियो भी बेटा यही आएगा, 1:2:1, जहां पे 1 means homozygous dominant R, 2 means heterozygous dominant R, and remaining 1 again means homozygous recessive R. So in case of incomplete dominance, beta, both genotypic and phenotypic ratio of F2 generation is same as that of 1:2:1. क्लियर. अब हुआ ये ऐसा क्यों हेटेरोजाइगस कंडीशन में ना तो व्हाइट फ्लावर आए ना ही रेड आए, क्यों एक इंटरमीडिएट कलर आया? तो उसका रीजन है, मेंडल ने बेटा बोला कि जब भी कोई जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में होगा तो एक डोमिनेंट एलील होगा, एक रेसेसिव एलील होगा, सच दैट वन ऑफ द एलील विल सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अनदर एलील एंड व्हाटएवर फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट एलील. ये तो मेंडल ने कहा. पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो, है तो हेटेरोजाइगस स्टेट बट सिंगल डोमिनेंट आर एलील इज नॉट सफिशिएंट इनफ to produce the dominant phenotype. यहाँ पर dominant phenotype मतलब red color flower बनाने के लिए minimum 2R dominant allele is required. Incomplete dominance बेटा quantitative inheritance बताता है, quality पे निर्भर नहीं करता कि भाई एक dominant allele है तो काम हो गया, dominant phenotype आ जाएगा. नहीं, ये quality पे नहीं है बेटा, ये quantity पे निर्भर कर रहा है. यहाँ पर 2 dominant allele चाहिए ही चाहिए to bring the dominant phenotype. अगर एक dominant allele होगा तो कुछ तो phenotype dominant के जैसा आएगा but not purely dominant, तो pink color आ गया. एक भी dominant allele नहीं होगा तो भाई कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखोगे, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट इज द क्वांटिटी of beta dominant allele that plays a role in deciding the phenotype of an organism. Quantitative inheritance है, single dominant, that is single dominant allele of R is not sufficient enough to produce maximum coloration which is red. Minimum coloration white भी नहीं होगा, तो intermediate coloration होगा flower का which is pink. क्लियर. तो भाई मेंडल की बात यहाँ पर फेल हो गई, मेंडल तो क्वालिटी की बात कर रहे थे, ये तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी हो गया. अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड एक्सेप्शन ऑफ मेंडल व्हिच इज मल्टीपल एलीलिज्म. हम सब क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है भाई, इट इज कंट्रोल्ड बाय IG. अब मल्टीपल एलीलिज्म, मेंडल बोलते थे कि एक जीन दो ही एलील से रिप्रेजेंट हो सकता है. वन जीन कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एलील्स आइदर इन अ पॉपुलेशन और इन एन ऑर्गेनिज्म. पर सच्चाई तो ये है कि सही बात है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर तो अ जीन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ एलील ओनली, बट नॉट इन केस ऑफ पॉपुलेशन. जरूरी नहीं है कि भाई पॉपुलेशन में भी एक जीन दो ही एलील से रिप्रेजेंट हो. देयर कैन बी मोर देन टू एलील ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन एंड द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इज योर ओन ब्लड ग्रुप. सो व्हाट इज मल्टीपल एलीलिज्म? When a gene is represented by more than two alleles in a population, correct? Like for example, IG, which is controlling the phenotype, that is your blood group. अब इसके कितने फॉर्म्स हैं बेटा? 3 फॉर्म्स होते हैं. कौन कौन से हैं वो? IA, IB एंड स्मॉल i. अब ये जो दोनों बेटा, ये दोनों ही डोमिनेंट है एंड दिस इज द ओनली रेसेसिव एलील. क्लियर. सो ये हो गया मल्टीपल एलीलिज्म. अगला है प्लियोट्रॉपी. मेंडल ने बोला दैट वन जीन विल कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर एंड वन, और कह सकते हो कि भाई हाँ वन जीन कैन ओनली कंट्रोल वन कैरेक्टर. पर प्लियोट्रॉपी एग्जिस्ट करती है व्हिच सेज दैट वन जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मटर में ही बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं. मटर में सीड साइज ये अलग कैरेक्टर है, सीड शेप ये अलग कैरेक्टर है, बट बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द सेम जीन B व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंजाइम कॉल्ड स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम. इसके अलावा फिनाइलकेटोनुरिया, सबको ये डिजीज के बारे में पता है, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. क्या होता है इस डिसऑर्डर में? तो इस डिसऑर्डर में बेटा आपको देखने को मिलता है कि भाई देयर इज अ प्रोडक्ट लैक ऑफ वन जीन फंक्शनिंग. एक जीन है जो भाई प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से देयर इज लैक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज. अब ये एंजाइम नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से कन्वर्जन ऑफ फेनिलएलनिन इनटू टायरोसिन इन द लिवर सेल स्टॉप्स. अब जब फेनिलएलनिन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट करता है और खुद को फेनिलएलनिन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ बॉडी पिगमेंटेशन हो जाता है. तो कहीं एक जीन के ना काम करने की वजह से देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, मेंटल रिटार्डेशन, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन. तो एक जीन इतने सारे बॉडी के कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी. तो फिर मेंडल की बात गलत होगी. मेंडल तो कहते थे भाई वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, बट दैट इज नॉट ट्रू. वन जीन बेटा कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर. 2 एग्जांपल बताए हैं, दोनों लिख लो. सबसे पहले एग्जांपल मैं दे रही हूं फिनाइलकेटोनुरिया का, ठीक है. What is phenylketonuria? It is an autosomal recessive disorder, genetic disorder है, Mendelian disorder है. जहां पर क्या हुआ भाई, देखो, so there's one gene called X, मानो X gene है. Now X gene ने काम करना बंद कर दिया. So due to the loss of the activity of X gene, so X gene when stops functioning, resulting in no production of, कौन से एंजाइम का प्रोडक्शन हो गया, रुक गया बेटा, resulting in no production of phenylalanine hydroxylase.
ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन, ठीक है, इनटू टायरोसिन स्टॉप्स, रादर फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड, ये बेटा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू सो मेनी कंडीशंस लाइक मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा भाई, फिर लॉस ऑफ पिगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ हेयर। तीन अलग अलग कैरेक्टर्स हैं बट तीनों ही इस जीन से कंट्रोल हो रहे हैं। सो इजंट इट प्लियोट्रॉपी? ये तो एक एग्जांपल हो गया। फिर मैंने बेटा दूसरा एग्जांपल आपको कौन सा समझाया? सो सेकंड एग्जांपल, द सेकंड एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज इन पाइथन सटाइवम, इन पी ओनली, इन पी प्लांट। जीन बी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम कॉल्ड स्टार्च ब्रांचिंग, एसबीई कहते हैं, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, एसबीई। ये बनने को जो प्रोडक्शन है वो ये जीन कंट्रोल करता है, और ये एंजाइम कितना बनेगा वो डिसाइड करता है पी के सीड शेप को भी और सीड साइज को भी। तो हो गई फिर से प्लियोट्रॉपी। अगर ये एंजाइम ज्यादा बनेगा तो सीड शेप प्रॉपर राउंड होगा, ये एंजाइम कम बनेगा तो रिंकल्ड सीड हो जाएगा, ये एंजाइम ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो सीड साइज बड़ा होगा, कम बनेगा तो स्मॉल साइज होगा। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम सीड शेप एंड सीड साइज आर डिसाइडेड। तो एक ही जीन है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। हो गया यहाँ पे प्लियोट्रॉपी क्लियर? क्या सबको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपी आगे समझ में एज मेंडल्स एक्सेप्शन। अब चौथा और आखिरी आ जाओ को डोमिनेंस पे बेटा। तो को डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेटा मतलब था कि व्हेन अ जीन इज प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस स्टेट, तो उसमें कोई भी अलील किसी भी दूसरे अलील पे पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, या ऐसे कह सकते हो दैट वन डोमिनेंट अलील इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस द डोमिनेंट फिनोटाइप। कम से कम दो डोमिनेंट अलील हो तभी जाके काम बनेगा। नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील बेसिकली फिनोटाइप को डिसाइड कर रहे थे। को डोमिनेंस में क्या होता है? मान लो अगर कोई जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में है और उसकी उस जीन के दो अलग अलग अलील साथ में है, और अगर दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस करे, कोई किसी को सप्रेस ना कर पाए, को डोमिनेंस कहते हैं। को मतलब साथ साथ, डोमिनेंस मींस एबिलिटी टू एक्सप्रेस। तो अगर दोनों अलील बराबरी से एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाए, सो दैट इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस। व्हाट इज को डोमिनेंस? When a gene in heterozygous state, when a gene in heterozygous state shows the dominance of both the allele, shows the dominance of both the alleles, दोनों ही allele बराबरी से डोमिनेंट है, कोई किसी पे रेसेसिव नहीं है, तो इस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्लियर? यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में देखो, चार ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा हमारे। कौन कौन से? ओ, ए, बी, ए बी। ठीक, ये जो तीन ब्लड ग्रुप है ना, ये तो बेटा तीनों ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। ऑल थ्री फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर जब हम एबी की बात करते हैं तो एबी फिनोटाइप आता है जीनोटाइप IA IB से। दिस इज द जीनोटाइप फॉर द फिनोटाइप एबी। यहां पर बेटा दोनों ही अलील इक्वली, दोनों ही डोमिनेंट अलील है। सो हियर बोथ द अलील्स आर इक्वली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, बोथ द अलील्स आर इक्वली एक्सप्रेसिंग themselves, दोनों ही दूसरे को बराबरी से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो दोनों के अकॉर्डिंग आया है। इट्स नाइदर ए नॉर बी, रादर इट इज ए बी। तो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, तो हो गया ना एक्सेप्शन। और क्या बन गया? इसे कहते हैं को डोमिनेंस। क्लियर? तो देख लिया भाई मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, और क्या भाई मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस सही बनाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सही दिया, पर वो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया वो एक काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेंडल ने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया बेटा वो 7 कैरेक्टर को स्टडी करके दे दिया मटर के। लेकिन दुनिया में से 7 ही कैरेक्टर थोड़ी ना है, सिर्फ मटर का ही पौधा थोड़ी ना है, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी स्पीशीज है, कितने जीन्स हैं, कितना अरेंजमेंट है। तो मेंडल की वो गलती तो होना स्वाभाविक थी। फिर जब समय के साथ जब धीरे-धीरे सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक करके मेंडल के काम को अपने हिसाब से स्टडी किया, रिसर्च किया, देन दे रियलाइज्ड दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट द करेक्ट लॉ, और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो यहां पर मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिए हैं। करेक्ट? गॉट माय पॉइंट? तो अब हम चलते हैं मेंडल के और आगे एक और काम की तरफ, एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा मेंडल ने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीइंग वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। अब जब हम यहाँ पे डाइहाइब्रिड की बात करते हैं, ये तो बात कर चुके हैं, हेडिंग डाल देती हूँ, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखेंगे? The pattern of inheritance of two gene controlling two character at the same time. Di means two. The pattern of inheritance of two gene controlling two character. ठीक है भाई? आगे सबको तक समझ में? The pattern of inheritance of two gene controlling two character. और यहाँ मैं एग्जाम्पल लूंगी seed shape and seed color का. So that example which I am going to take to explain my dihybrid cross is seed shape and seed साइज। सीड शेप मेंडल ने भाई दो बताए, एक डोमिनेंट व्हिच इज योर राउंड एंड रेसेसिव दैट इज रिंकल्ड। सीड साइज नहीं लिया, सॉरी, सीड कलर, आई एम सो सॉरी, मेंडल डिड नॉट कंसीडर सीड साइज एज वन ऑफ द कैरेक्टर, मेंडल ने कलर लिया था, और कलर दो है भाई, डोमिनेंट येलो, रेसेसिव ग्रीन। तो सीड कलर के लिए जीन हम वाई ले लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, और शेप के लिए हम जीन आर ले लेते हैं। तो हमने कैरेक्टर देख लिए और उनकी क्या प्योर लाइंस है, प्योर लाइन के फिनोटाइप भी हमने देख लिए। अब जब भी हम क्रॉस शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट व्हिच हैज टू बी प्योर लाइन फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। तो मेरा पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। क्लियर? तो अब जब मैं यहां पे अपने पेरेंट सिलेक्ट करूंगी तो सबसे पहला राउंड एंड येलो क्रॉस्ड विद
wrinkled and green seeds, तो ये बेटा मेरे पेरेंट है, these are the parent। अब क्या होगा, क्रॉस होगा, तो सबसे पहले तो हम गैमीट्स ऑब्टेन करेंगे, दोनों ही जीन होमोजाइगस स्टेट में है, तो n की वैल्यू 0, इफ n वैल्यू इज 0 देन नंबर ऑफ गैमीट्स ऑब्टेन विल बी 1। तो यहाँ पे F1 जनरेशन के लिए गैमीट हो गया ये, और यहाँ पे बेटा गैमीट हो गया ये, ठीक। गैमीट बनने के बाद जरा क्रॉस करा दो, so all F1 offspring generation will appear round in shape with yellow color seed। तो जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था सेम डाइहाइब्रिड में हुआ, कोई अंतर नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं अंतर आया? क्योंकि यहाँ पर भी जितने F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग हैं वो सारे के सारे अपने पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं। किस पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट को। तो मोनोहाइब्रिड में भी यही हुआ था, ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर हेटेरोजाइगस फॉर द जीन एंड दे वर रिजेंबलिंग द डोमिनेंट पेरेंट इन विद रिस्पेक्ट टू फिनोटाइप। यहाँ पर भी वही हुआ, कोई अंतर नहीं है। फिर क्या कराया था मेंडल ने? सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो आओ करवाते हैं हम भी भाई सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो अब बेटा जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन है। अब देखो दो जीन प्रेजेंट है और दोनों ही जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में है, तो भाई कितने गैमीट्स बनेंगे? 2 की पावर 2 मींस टोटल 4 गैमीट्स विल बी ऑब्टेन्ड। गैमीट्स बनाना सबको आता है, ब्रांचिंग मेथड। तो कैसे देखो, जीन्स को हम इस तरीके से, अलील्स को और जीन्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। कौन कौन से गैमीट बने? पहला गैमीट, राइट, कोई कंफ्यूजन? हमने सिखाया था ना क्लास में। दूसरा, तीसरा, और ये आया हमारा चौथा गैमीट। आगे हमारे 4 गैमीट्स। अब बस गैमीट्स आगे हमारे, अब ये इस 4, ये 4 इसके, सेम इसके भी 4 गैमीट बनेंगे। तो भैया जितने गैमीट्स बने उनका आपस में क्रॉस करा के F2 जनरेशन के अब हम ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन करने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो सारे बच्चे आ जाओ भाई, लेट्स ड्रॉ द पनेट स्क्वायर। 4 4 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बेटा बनेंगे, तो 16 डब्बे बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। 1 2 3 1 मोर। अब ऊपर वाले डब्बों में तो भाई गैमीट्स लिख दो मेल और फीमेल के, तो मैम भी लिख रही हैं, आप भी अपने साथ साथ कॉपी में अगर कर रहे हो तो प्लीज मेरे साथ साथ इस काम को करो, राइट। चलो अब बॉक्स को भरते हैं और देखते हैं फिर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो दिस इज हाउ यू फिल द बॉक्स। मैम फिल कर रही है, अगर आप लोग अपनी कॉपी में कर रहे हो तो प्लीज मैम के साथ करो इस चीज को। जरूरी है, जब खुद से बनाओगे तभी चीजें समझ में आएंगी, देख देख के तो बस कुछ भी ऐसे दिखता रहेगा ये बेटा। हाथ से खुद से काम करोगे ना तभी चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, राइट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पॉसिबल 16 जाइगोटिक यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बेटा बनके तैयार हैं। अब जब आप इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन फॉर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस comes to be 9:3:3:1, right? जहां पे जो 9 है, the 9 ones are dominant, 3 are dominant for one allele and recessive for another, again remaining 3 are again dominant for one and recessive for another, and 1 is recessive for both the features। कहीं ना कहीं बेटा मेंडल का ये मानना था कि डाइहाइब्रिड इज एक्चुअली 2 मोनोहाइब्रिड। मेंडल कहते थे कि जो एक जीन का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, तो अगर उसके साथ हम एक और जीन को ऐड करेंगे तो उसका भी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा। अगर एक और ऐड कर देंगे, कल को ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बनाओ, मतलब 3 जीन का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करो। तो मेंडल का मानना था कि हर जीन इंडिविजुअली काम करती है, लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो अगर 1 जीन मोनोहाइब्रिड रिजल्ट आ रही है तो डाइहाइब्रिड मतलब 2 मोनोहाइब्रिड, ट्राई मतलब 3 मोनोहाइब्रिड, टेट्रा मतलब 4 मोनोहाइब्रिड। तो उसी तरीके से मेंडल ने क्या बोला कि 1 डाइहाइब्रिड इज इक्वल टू 2 मोनोहाइब्रिड। अब देखो कैसे इसका रिजल्ट भी कैसे इनसे मैच कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम एवरी जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। मेंडल मानते थे कि चाहे एक क्रोमोसोम पे 10 जीन हो, लेकिन 10 जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ही नहीं एक दूसरे से। जब सेग्रीगेशन होगा, जब मियोसिस होगी, तो सारी जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर उनके सारे एलील्स भी अलग हो जाएंगे और फिर नए गैमीट्स बनेंगे। मेंडल ये मानते थे। तो मतलब 1 डाइहाइब्रिड इज इक्वल टू 2 मोनोहाइब्रिड। तो बेटा मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1। एक और मोनोहाइब्रिड का भी तो वही होगा, तो 3:1 × 3:1 कितना होता है? 9:3:3:1, है कि नहीं? तो तभी तक डाइहाइब्रिड का यही रेशियो आया है, क्योंकि मेंडल इसी चीज को मानते थे। अब अगर यही मुझे इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखना होता, बात तो वही रहेगी, है कि नहीं? अब अगर मुझे इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखना होगा तो मतलब 2 मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो 1:1 into 1:2:1, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो। 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1, ये हो जाएगा F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर? इसी बेसिस पे बेटा मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए एक लॉ फ्रेम कर दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ यही कहता है जो मैंने अभी आपको बोला कि मतलब एक क्रोमोसोम पे चाहे जितने भी जीन लोकेटेड हो, all the genes will segregate out independently and then their alleles will also segregate out independently without blending, without influencing each other, and gametes हमेशा प्योर बनेंगे। तो फिर क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? अकॉर्डिंग टू मेंडल, genes located on the chromosome, genes located on chromosome बेटा segregate independent of each other, independently, without influencing, without blending during meiosis, followed by their alleles। जबकि ये बात तो भाई बिल्कुल ही गलत है। मेंडल मानते थे मान लो ये इनका क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में मान लो जीन लगे हुए हैं, एक आर जीन हो गया, एक वाई जीन हो गया और एक मान लो ए जीन हो गया, तीनों जीन है ना। मेंडल बोलते थे कि जब ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा, मियोसिस करेगा, तो तीनों जीन, अभी तो ये कुछ इस तरीके से है, तीनों साथ में दिख रहे हैं, डिप्लॉयड कंडीशन है, पर जब गैमीट बनाएंगे तो भाई पहले तो तीनों ही जीन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, फिर इनके सारे अलील भी अलग हो जाएंगे।
तो ये बात तो ठीक है, लॉस एग्रीगेशन है कि अलील तो सेपरेट होते हैं, ये मान ली बात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चल गया। लेकिन ये किसने कहा कि ये सही है? जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम दे एसोसिएट विद ईच अदर, ये दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और इसके बारे में हमें बताया मॉर्गन ने। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेटा एक्सेप्शन है लिंकेज। क्या है इसका एक्सेप्शन? लिंकेज इसका एक्सेप्शन है। मेंडल ने बोला जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे है, भले पास है दूर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे पास पास होंगे तो बेटा वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे इंडिपेंडेंटली, बल्कि वहां पर वो एक दूसरे को होल्ड कर लेंगे, टाइटली लिंक हो जाएंगे और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर? तो इस चीज को आगे जाके प्रूव किया मॉर्गन के कॉन्सेप्ट लिंकेज ने। सो द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय टीएच मॉर्गन, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक, तो ये काम कर रहे थे बेटा ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला व्हिच इज नोन एज द बेस्ट ऑर्गेनिज्म, इट इज द मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी जीन जेनेटिक्स एंड ऑल दैट। सो व्हाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का बेटा कॉमन नेम होता है फ्रूट फ्लाई। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जैसे पाइथन सटाइवम है ना, वन ऑफ द मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी जेनेटिक्स, वैसे ही ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई ये भी एक बड़ा ही बेहतरीन ऑर्गेनिज्म है टू स्टडी जीन्स एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, तो नई जनरेशन जल्दी जल्दी आएगी, पर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, इनको कल्चर करना बड़ा ही आसान है, दे आर वेरी इजी टू ग्रो। फिर इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है, एक्स एक्स मींस फीमेल, एक्स वाई मींस मेल, प्लस ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब दे फीमेल्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू मेल, तो आप बस देख के ही बता दोगे कि अच्छा ये मेल फ्लाई है, ये फीमेल फ्लाई है। तो इतने सारे गुड फीचर्स की वजह से अच्छा इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कम होते हैं, दे ओनली हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ व्हिच 3 पेयर आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो इतनी सारी गुड प्रॉपर्टीज की वजह से ड्रोसोफिला इज कंसीडर्ड एज बेस्ट ऑर्गेनिज्म टू डू सम जीन रिलेटेड रिसर्च। करेक्ट? चलो तो ड्रोसोफिला को लेकर कहानी हो गई। हमारा मुद्दा है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को समझना, ताकि हमें लिंकेज क्या है वो पता चल जाए। राइट, शुरू करें? चलो आ जाओ भाई। तो बेटा सबसे पहली बात, मॉर्गन ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे और इन्होंने ड्रोसोफिला के 3 कैरेक्टर को चूज किया। इन्हें भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना था। क्या करना था बेटा इनको भी? ही आल्सो हैड टू परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ओनली, तो उसके लिए जीन कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 कैरेक्टर चूज किए। तो इन्होंने जो बेटा 3 कैरेक्टर चूज किए, कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। सो ही दिस फेलो मॉर्गन चोज 3 जीन्स controlling 3 character for his hybridization experiment located on X chromosome। ठीक है, अब वो 3 जीन और कैरेक्टर्स कौन कौन से थे भाई, पहले उसकी लिस्ट बना लो। ओके, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं जीनोटाइप लिखूंगी, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो कैरेक्टर एक तो इन्होंने बेटा बॉडी कलर चुना, सेकंड ही चोज वाज आई कलर, एंड थर्ड ही चोज वाज विंग साइज। The homozygous dominant phenotype and homozygous recessive phenotype. Dominant for body color is brown, represented as Y plus Y plus plus लगाने का बेटा मतलब होता है म्यूट डोमिनेंट allele wild type, right? And recessive is yellow। ठीक, वैसे ही आई कलर बेटा अगर डोमिनेंट आई कलर है दैट इज रेड, represented as W plus W plus, and recessive is white, represented as W W। विंग साइज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल विंग साइज इज द डोमिनेंट फीचर, represented as M plus M plus, and recessive phenotype is miniature small wing size, represented as MM। ठीक, अब इन 3 कैरेक्टर के बदौलत मॉर्गन ने 3 क्रॉस बनाए। पहला क्रॉस तो इन 2 कैरेक्टर के बीच में था, बॉडी कलर आई कलर। दूसरा क्रॉस उन्होंने बनाया आई कलर और विंग साइज के कंसीडर करके, और तीसरा उन्होंने बनाया बेटा बॉडी कलर और विंग साइज एज कैरेक्टर्स को चूज करके। क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ 3 जीन्स कंट्रोलिंग 3 कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, मॉर्गन प्रिपेयर्ड 3 क्रॉसेस एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। क्या था वो क्रॉस? आ जाओ भाई क्रॉस बनाते हैं हम। तो सबसे पहले क्रॉस बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जी हाँ, सबसे पहले बेटा हमें पेरेंट चूज करना होता है। और पेरेंट क्या होते हैं? पेरेंट्स आर ऑलवेज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रिसेसिव, मींस प्योर लाइन पेरेंट लेने पड़ते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम लिया है मेंडल ने, जो जीन चूज किया है बेटा वो एक्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर है, और ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला में। फीमेल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया भाई दोनों डंडे मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है भाई, दे आर पेयर। लेकिन फीमेल के केस में दे ओनली हैव 1 एक्स क्रोमोसोम एंड द अनदर सेक्स क्रोमोसोम इज वाई। तो वाई को बेटा मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लाइन और एक डंडा खींच दिया नीचे। ठीक, तो मतलब ये मेरा मेल ड्रोसोफिला है, ये फीमेल ड्रोसोफिला है। राइट, अब कौन से कैरेक्टर में पहला क्रॉस बना रही हूँ? बॉडी साइज और आई कलर के बीच में। तो सबसे पहले मैं फीमेल होमोजाइगस डोमिनेंट ले रही हूँ एंड मेल आई एम टेकिंग होमोजाइगस रिसेसिव। ये ऐसे कर सकते हैं, मेल को होमोजाइगस डोमिनेंट मान लेते हैं और फीमेल को होमोजाइगस रिसेसिव। सो फीमेल इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर। तो ये अरेंजमेंट होगा, ये एक जीन होगी, ये दूसरी जीन होगी। ठीक, मेल इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा अब यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा तो वाई है, तो यहाँ पर जो जीन्स है वो हेमीजाइगस स्टेट में होंगे। इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला द अरेंजमेंट विल बी 1 जीन रिप्रेजेंटेड बाय 1 allele ओनली। है कि नहीं? मानते हो? वाई क्रोमोसोम पे बना दूं, वाई क्रोमोसोम पे W प्लस और वाई प्लस लिख दूं? कैसे लिख दूं भाई? जब वो है ही नहीं आपस में होमोलोगस, तो भाई उनका जो कॉम्बिनेशन है वो तो पूरा वहां नहीं होगा। चलो अब गैमीट्स बनाओ, यहाँ पे आपको भी एक ही गैमीट मिलेगा, पर यहाँ 2 गैमीट मिलेंगे। क्यों? वन विद एक्स क्रोमोसोम, अनदर विद वाई क्रोमोसोम। फिर F1 जनरेशन के आपके पास क्या आएंगे? ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। सबसे पहला ऑफस्प्रिंग आएगा भाई, फीमेल्स विल बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन एंड मेल्स विल बिकम रेसेसिव फॉर बोथ द एलील्स। ठीक है, अभी आपने फीमेल क्या ली थी यहाँ पे? योर फीमेल्स वर येलो बॉडीड एंड व्हाइट कलर्ड विद आई। मेल क्या था आपका? मेल ड्रोसोफिला वाज ब्राउन एंड रेड आइड। अब उल्टा हो गया, मेल क्या बन गए? येलो व्हाइट, फीमेल क्या बन गई? ब्राउन रेड बन गई। हो गया F1 जनरेशन। नेक्स्ट क्या कराया? सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाने के पहले क्रॉसिंग ओवर होगी, तो बेटा मेल्स तो आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते। क्यों? हेमीजाइगस कंडीशन है, तो मेल्स के तो हमेशा 2 ही गैमीट आएंगे।
फीमेल क्रॉसिंग ओवर करेगी और 4 गैमीट्स बनाएंगी। कौन कौन से 4 गैमीट? 2 तो बेटा प्योर लाइन पेरेंट जैसे बन जाएंगे और बाकी 2 क्रॉसिंग ओवर की वजह से आएंगे, Y W प्लस Y प्लस W। क्लियर? यस। अब गैमीट्स बन चुके हैं तो अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन का चार्ट। तो दीज आर दी F2 जनरेशन गैमीट्स। तो अब हमें बनाना पड़ेगा पनेट स्क्वायर, राइट? तो भाई यहां पर कौन से मेल के 2 गैमीट आए हैं एंड फीमेल के कितने गैमीट हैं? 4, जिसमें से 2 तो पेरेंटल टाइप है और जो बाकी 2 हैं वो बेटा रिकॉम्बिनेंट है। सो दीज 2 आर द रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स, दीज 2 आर द पेरेंटल गैमीट्स। अब एक बार बॉक्सेस भर देते हैं हम। YW YW करेक्ट। चल अब ऊपर के अगर 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखोगे तो बेटा ये तो पेरेंटल टाइप है और नीचे के अगर 4 देखोगे तो ये जो है बेटा ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। मेंडल ने कहा था कि चाहे कोई सा भी F2 जनरेशन का क्रॉस बनेगा तो जो पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट का रेशियो होगा दैट विल बी 10:6। 9331 था, इसमें से 9 and 1 वर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस एंड 33 वर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस। तो मेंडल ने कहा था अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दैट एट द एंड ऑफ F2 जनरेशन द नंबर ऑफ पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट विल बी 10:6। माना पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे पर इतने भी ज्यादा नहीं होंगे कि रिकॉम्बिनेंट ना बने। पर यहां जब देखा गया, जब मॉर्गन ने अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया विद द हेल्प ऑफ दीस 2 कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, तो इनका तो गजब का डिविएशन आ गया। 98.7% पेरेंटल टाइप थे, 10:6 तो छोड़ो, यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे ही पेरेंटल टाइप बन गए। ये नीचे वाले जाइगोटिक कॉम्बिनेशन तो हार्डली 1.3% आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं। इसका मतलब सिर्फ पेरेंटली गैमेट्स बनते रहे। इसका मतलब भाई यही वाले 2 बनते रहे, ये वाले 2 तो बेटा बने बहुत कम, हार्डली 1.3% बने, जो ना के बराबर है। मतलब क्रॉसिंग ओवर की नहीं दोनों ही जीन ने। तो बाद में पता चला कि भाई ये दोनों जीन X क्रोमोसोम पे बहुत नजदीक हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम होने की वजह से ये दोनों जीन बेटा आपस में लिंक हो गए हैं। लिंक होने की वजह से ये आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पा रहे। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो रिकॉम्बिनेशन वाले गैमीट्स कम बन रहे हैं, तो पेरेंटल वाले गैमीट अपने आप ज्यादा बन जा रहे हैं। इसे बोलते हैं लिंकेज। और मेंडल कहते थे कि चाहे डिस्टेंस ज्यादा हो चाहे डिस्टेंस कम हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जीन तो हमेशा सेग्रीगेट होंगे, हमेशा 10:6 के रेशियो में ही पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पर यहां तो वो चीज फेल हो गई, है कि नहीं? तो क्या हुआ टू द सरप्राइज? एट द एंड ऑफ F2 generation 98.7% parental zygotic combinations were obtained and hardly 1.3% recombinants वाले zygotic combination आए। इसका क्या मतलब हुआ? Therefore Morgan concluded, मॉर्गन ने बेटा क्या कंक्लूड किया? मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि हो ना हो ये जीन्स जो है, मॉर्गन कंक्लूडेड दैट these 2 genes are located very close to each other. These 2 genes are located very close to each other. Therefore, percentage of crossing over decreased. क्रॉसिंग ओवर की जो चांसेस थे वो बेहद कम हो गए। राइट, गॉट माय पॉइंट? और यहीं से लिंकेज आया। फिर बेटा मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिन्हें बोलते हैं अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। इन्होंने बेटा जीन की पोजीशनिंग कर डाली। इन्होंने कहा कि जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, लीनियरली। इन्होंने क्या बोला कि जो जीन्स है बेटा वो क्रोमोसोम पे लीनियरली लोकेटेड है, और इस बेसिस पे इन्होंने लोकेशन दे दी जीन्स की। तो अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट एस्टैब्लिश्ड द जेनेटिक मैप, जहां उन्होंने क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कहने का मतलब है कि मान लो अगर यहाँ पे 1.3% आया है रिकॉम्बिनेशन Y और W जीन का, तो 1.3 एक्चुअली उनका डिस्टेंस है। तो अगर मान लो कोई X क्रोमोसोम है, तो मान लो अगर यहाँ पे मेरा ये X क्रोमोसोम है, तो X क्रोमोसोम पे Y और जो W जीन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यूनिट है बेटा सेंटीमॉर्गन, CM लिखते हैं। तो ये बेटा जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन है, स्टुअर्ट वेंट ने कहा वही 2 जीन के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर? यस और नो? एंड दिस इज दी X क्रोमोसोम। डिस्टेंस बहुत कम है, ये तो बड़े पास पास लगे हुए हैं, तो ज्यादा पास पास लगने की वजह से क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो पाई। सिंपल एज दैट, राइट? यस और नो? क्या सारे बच्चों को यहां तक ये बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लिंकेज के बारे में बात। अब एक छोटी सी थ्योरी पढ़नी है, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। It was proposed by Sutton and Boveri. However, इसका experimental verification मॉर्गन ने ही दिया था। Chromosomal theory of inheritance किसने प्रपोज की थी? It was proposed by Sutton and Boveri, but experimental verification was given by, experimental verification किसने दिया बेटा? मॉर्गन ने दिया था। So Morgan gave the experimental verification. ये थ्योरी कुछ खास नहीं है, ये बिल्कुल मेंडल की थ्योरी की कॉपी हो गई है। मेंडल ने जो जीन के लिए बोला वही चीज सटन बोवेरी ने क्रोमोसोम के लिए बोला। जैसे मान लो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अ जीन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ अलील।
तो फिर क्रोमोसोम भी तो पेयर में होंगे भाई, जीन हवा में थोड़ा लटके हुए हैं, जीन भी तो क्रोमोसोम पर ही है, तो जो जीन का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा वही तो क्रोमोसोम का होगा। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जीन पेयर के फॉर्म में है तो क्रोमोसोम भी पेयर के फॉर्म में होगा। अगर मियोसिस के टाइम अगर अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट हो रहे हैं और हर गैमीट को एक ही अलील मिल रहा है तो होमोलोगस पेयर भी सेपरेट होंगे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली, और हर क्रोमोसोम को एक पेयर का एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। फिर अगर तुमको बाद में ये प्लॉइडी रिस्टोर करना है, हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉइड में आना है, तो फिर से जैसे फर्टिलाइजेशन करानी पड़ेगी, तो भाई जैसे अलील साथ आ जाएंगे फिर जीन बन जाएगा, वैसे क्रोमोसोम भी साथ आ जाएंगे फिर से जोड़ा बन जाएगा। ये करने के दौरान कोई अलील का लॉस गेन प्रॉफिट नुकसान कुछ नहीं होता, तो क्रोमोसोम का भी कुछ नहीं होता। कहीं इन्होंने इन दो भाई साहब ने कुछ स्पेशल काम नहीं किया। जो मेंडल ने जीन के लिए बोला ऑटोमेटिकली वो चीज एप्लीकेबल थी क्रोमोसोम पर इन्होंने वो चीज बोल के एक नई थ्योरी बना के पब्लिश करा दी और अपने नाम को अमर करवा दिया, है कि नहीं? आर दीस टू पीपल वेरी स्मार्ट? दे डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल बट स्टिल दे आर सो मच नोन पीपल नाउ। ठीक है, चलो देखो भाई, सो व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? पहला पॉइंट, लाइक जीन अकर्स इन पेयर, तो बेटा जैसे जीन पेयर के फॉर्म में अकर करते हैं इन अ diploid organism, so like gene occur in pair in a diploid organism, so the chromosome. ठीक, दूसरा पॉइंट, like alleles of a gene segregate, like alleles of a gene separate during meiosis and each gamete receive only one allele, each gamete receive only one allele, so the chromosome, ये चीज क्रोमोसोम के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर तीसरा क्या बोला भाई, अगर तुम्हें प्लॉइडी को रिस्टोर करना है, इफ यू वांट टू रिस्टोर द प्लॉइडी, in order to restore the pair of gene and chromosome, pair of allele to form a gene and chromosome, fertilization की जरूरत है। fertilization is required और इस काम के दौरान कोई लॉस कोई गेन नहीं होता है। तो इतनी आसान थी ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ चुकी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। टू डिटरमाइन दैट हाउ विल यू से कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, तो क्या पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होना चाहिए? तो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन दो कारणों से हो सकता है। एक होता है जेनेटिकल, जो सबसे बड़ा कारण है जहां पे हम क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखते हैं। दूसरा होता है एनवायरमेंटल। तो कुछ एम्फीबियंस में जैसे टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल है, उनमें बेटा वो अंडे दे देते हैं, लेकिन जब अंडा देते हैं ना तो वो अंडा फूट के मेल बनेगा फीमेल बनेगा ये नहीं पता होता। वो डिपेंड करता है कि उस अंडे को हैचिंग के टाइम पे क्या टेंपरेचर दिया, हाई टेंपरेचर तो मेल बन गया, लो टेंपरेचर तो फीमेल बन गया। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है टेंपरेचर के बेसिस पे इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादातर तो जेनेटिकल होता है, क्रोमोसोमल होता है कि अगर XX है जैसे हमारे में तो फीमेल है, XY है तो मेल है, करेक्ट? तो सबसे पहले बेटा हम जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जीन मींस क्रोमोसोमल रिलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एज मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब कि भाई मेल्स आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, बट फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ गैमीट। सो मेल हेट्रोगैमेटी मींस मेल्स आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। फीमेल हेट्रोगैमेटी का बेटा क्या मतलब हो गया कि अगर फीमेल अलग अलग दो टाइप के गैमीट बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। सो व्हेन फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, करेक्ट? यस और नो? अब मेल हेट्रोगैमेटी में बेटा दो कंडीशंस आती हैं, कौन कौन सी वो है? एक है XXXO टाइप एंड सेकंड इज XXXY टाइप। फीमेल हेट्रोगैमेटी में दो कंडीशंस हैं, ZZZO टाइप, ZZZW टाइप। तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई आओ, तो सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? हमारे पास है XXXO टाइप। इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा हमें ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है, जहां पे जो फीमेल ग्रास हॉपर्स हैं, द डिप्लॉइड कंडीशन इज दिस, तो ये एक ही टाइप का गैमीट बनाएंगी। The type of gamete produced by them is only A plus X, but यहीं अगर इनके मेल्स की बात करते हैं so it is AAXO। O मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, इनमें से एक ही सेक्स क्रोमोसोम है जो कि X है, दूसरे की जगह खाली है, तो उसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक गैमीट ये बन जाएगा, दूसरा गैमीट ये बन जाएगा, जहां मेल अलग अलग गैमीट बना रहे हैं ना। वैसे ही फीमेल्स हमारे में और ड्रोसोफिला के केस में बेटा XXXY टाइप है, तो ह्यूमंस हो गया इसका एग्जांपल, ड्रोसोफिला हो गया इसका एग्जांपल। और यहाँ क्या है भाई, देखो मेल और फीमेल की क्या कंडीशन है? पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड सेम सेक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल तो एक ही टाइप का बेटा गैमीट बनाएगी, मेल दो टाइप का गैमीट बना सकते हैं, एक के पास X क्रोमोसोम होगा और दूसरे के पास Y क्रोमोसोम होगा। क्लियर? दिस इज मेल हेट्रोगैमेटी। अब हम बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। तो फीमेल हेटेरोगैमेटी में बेटा क्या होगा? दो कंडीशंस हैं, एक तो मैं ZZZO टाइप पहले बताने जा रही हूं, जो आप देखते हो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के केस में। सो द एग्जांपल इज मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। क्या होता है भाई, इनके केस में जो मेल्स हैं दे आर AAZZ टाइप, प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट दैट इज A plus Z। जो फीमेल्स हैं डिप्लॉइड कंडीशन में ऐसी होती हैं,
तो भैया दो टाइप के गैमीट बना सकती हैं, वन गैमीट हैविंग सेक्स क्रोमोसोम एज Z एंड अनदर हैविंग नो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन जो बर्ड्स में देखने को मिलती है जैसे मुर्गे वगैरह में, सो दिस कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ बर्ड्स। क्या होता है बर्ड्स के केस में बेटा, जो मेल्स हैं दे आर वही सेम टाइप के गैमीट बना रहे हैं, बट फीमेल्स आर producing two types of gametes, one with Z chromosome as sex chromosome and another with W chromosome as sex chromosome। क्लियर? बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस बेटा एग्जांपल याद रखना है सेक्स डिटर्मिनेशन में, दैट्स इट। अच्छा एक चीज और बता दूं, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, एंड व्हाइल ही वाज वर्किंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। तो बस ये नोट पॉइंट लिख लो, ज्यादा से सवाल आता नहीं है, फिर भी बस ये नोट पॉइंट लिख लो। सो हेंकिंग डिटरमाइंड सेक्स, तो हेंकिंग ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था, हेंकिंग व्हाइल स्टडीइंग spermatogenesis in few insects बेटा gave the concept of sex determination। बस इतना याद रख लेना, इसी से रिलेटेड तुमसे कोई ना कोई सवाल पूछ लेंगे बस। बहुत इजी टॉपिक है ये, उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों को ये चीज यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब एक छोटी सी टॉपिक रह गई है सेक्स डिटर्मिनेशन में ही, एलिनो टोकी, और उसके बाद दो टॉपिक रह जाते हैं हमारे म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो भाई क्लियर हो गया है सबको यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा जिसे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो? Hope you all have understood this simple topic of sex determination. So now proceeding further, अब आगे बढ़ते हैं भाई और अगले टॉपिक की तरफ, which is mutation। चलो भाई, तो क्या है म्यूटेशन? एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उससे हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, पर हाँ ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वही इसको यहाँ पे कवर करेंगे। सो बेसिकली बेटा म्यूटेशन इज अ सडन चेंज दैट हैपेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स। जीनोटाइप में कोई सडन चेंज हो जाए, इरिवर्सिबल चेंज हो जाए, मे बी इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल चेंज हो जाए, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का अगर फिनोटाइप चेंज हो जाता है तो उस सडन चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। द टर्म म्यूटेशन बेटा वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो दी वेरिस व्हाइल वर्किंग ऑन ओइनोथेरा लेमार्कियाना। तो सबसे पहले अच्छा ठीक है, म्यूटेशन से मुझे याद आया हमारा एक टॉपिक जो है एलिनोटोकी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी रहता है, तो पहले हम वो कवर कर लेते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? हाँ मैंने बोला था और पता नहीं कैसे मैं म्यूटेशन पे शिफ्ट कर गई। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को? दिस इज नोन एज एलिनोटोकी। बेटा होता क्या है, हनी बीज में जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड। तो जो मेल्स हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, जबकि फीमेल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मान लो मेरी एक क्वीन बी है, सो क्वीन इज द फीमेल बी जिसके पास डिप्लॉइड नंबर में टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, द मेल्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, अब क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो बेटा ये गैमीट कैसे बनाएंगे? गैमीट्स भी हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, सो ड्रोन से प्रोड्यूस गैमीट वाया माइटोसिस एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड हैविंग 16 क्रोमोसोम। क्वीन बी को बेटा अगर गैमीट बनाना है तो रिडक्शन डिवीजन करना पड़ेगा एंड देन दे विल प्रोड्यूस गैमीट हैविंग 16 क्रोमोसोम। नाउ व्हेन ड्रोन्स एंड क्वीन बी दे विल फर्टिलाइज, व्हेन दे विल have the population, then they are going to produce a new offspring which is a diploid cell। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो तो फीमेल बनेगी, और मान लो कोई फीमेल का एग, क्वीन बी का कोई गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के अगर डेवलप कर गया तो वो ड्रोन बनेगा। सो ड्रोन्स आर द रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, whereas females both honey bee, queen bee and worker bee, they are the result of fertilization। तो यहाँ पर बस ये डिफरेंस होता है बेटा। क्या डिफरेंस होता है? जैसे हमारे में तो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, पर हनी बी में मेल्स आर स्पेसिफिकली हैप्लॉइड व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम पार्थिनोजेनेसिस बाय द फीमेल गैमीट, व्हेयरएज फीमेल्स आर डिप्लॉइड व्हिच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। करेक्ट? यस और नो? तो आप देख सकते हो मेल्स मतलब ड्रोन्स बनाने में मेल का कोई ड्रोन बनाने में ड्रोन का कोई हाथ नहीं है, सारा रोल ही क्वीन बी का उसी के गैमीट से डेवलप कर जाता है पार्थिनोजेनेसिस से। करेक्ट? यस। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा म्यूटेशन। तो बेटा मैंने आपको म्यूटेशन के क्या बताया हुआ है, पहले एक पेज ऐड कर लेते हैं। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, unexpected change in the genotype of an organism। What is mutation? It is a sudden change in the genotype of an organism due to which phenotype changes, जिसकी वजह से बेटा phenotype organism का बदल जाता है, इसे mutation कहते हैं। ठीक है? mutation का जो term है बेटा वो पहली बार दिया था साइंटिस्ट ह्यूगो दी वेरिस ने while he was working on an organism called Oinothera lamarckiana, Oinothera commonly called as evening primrose। Oinothera lamarckiana commonly called as evening primrose। अब बेटा म्यूटेशन तीन टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, जीन म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन म्यूटेशन क्या है। ठीक है, जीन म्यूटेशन का बेटा मतलब होता है जब क्रोमोसोम पर मौजूद किसी एक जीन के कोई आता न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए, ऑल्टरेशन आ जाए। हम सब जानते हैं जीन्स आर द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो अगर एक ही जीन के न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट में कोई ऑल्टरेशन आता है तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं, व्हिच कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। करेक्ट? तो जीन म्यूटेशन क्या है बेटा? चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, change in the arrangement of nucleotide of a gene। ठीक है, ये बेटा दो प्रकार का हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियोटाइड का या ऐड होना या डिलीट होना, जिसकी वजह से पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क ऑफ द जीन विल गेट ऑल्टर्ड। तो रीडिंग फ्रेमवर्क बदल रहा है डिलीट या ऐड होने की वजह से, जिसकी वजह से उसे हम फ्रेम शिफ्ट मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। क्यों? डिलीशन या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हो, जैसे कोई टीचर एब्सेंट होता है भाई तो आपको फ्री पीरियड नहीं मिलता, उसके लिए कोई और आके पढ़ा देता है, मतलब बॉटनी की जूलॉजी पढ़ ली तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो गया, चेंज तो हुआ पर
चेंज ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज डिलीट हो रही है या ऐड हो रही है, वही समय पे किसी और ने आपको पढ़ा दिया। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक न्यूक्लियोटाइड था, एक्स की जगह वाई आ गया, वाई की जगह एक्स आ गया, तो रीडिंग फ्रेम तो उतना ही रहेगा। मान लो कोई एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड है तो 10 के 10 ही रहेंगे, हाँ उनका नेचर जरूर चेंज हो जाएगा। पर फ्रेम शिफ्ट में तो क्या पता 10 के 11 हो जाए, अगर एडिशन है क्या पता 10 के 9 ही रह जाए, डिलीशन है तो रीडिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया कि नहीं हो गया। करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन बेटा फिर से दो टाइप का हो सकता है, एज ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ठीक, फ्रेम शिफ्ट दो टाइप का हो सकता है, डिलीशन एंड एडिशन। ट्रांजिशन का बेटा मतलब होता है, अब देखो चार ही टाइप के, दो ही टाइप के बल्कि न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरीन पिरिमिडीन। प्यूरीन मतलब एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन मतलब थाइमिन साइटोसिन। तो अगर प्यूरीन की जगह प्यूरीन आ जाए, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन, मतलब मान लो पहले थाइमिन था अब उसकी जगह साइटोसिन लग गया, पहले ग्वानिन था उसकी जगह एडेनिन लग गया, तो नेचर तो चेंज हो रहा है पर प्यूरीन से प्यूरीन रिप्लेस हो रहा है। सो दैट इज नोन एज, सो व्हेन प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन और pyrimidine is replaced by pyrimidine, so that is known as transition type of substitution mutation। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्जन की। ट्रांसवर्जन में बेटा क्या होता है, प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन, पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन, जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा, एडेनिन की जगह यूरासिल आ जा रहा है, एडेनिन प्यूरीन है, यूरासिल क्या है, पाइरिमिडीन है, तो हो गया म्यूटेशन। पर कैसा, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। करेक्ट। सो व्हेन प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन और वाइस वर्सा। बेस्ट एग्जांपल इज, ये मैं आपको बता चुकी हूं, व्हिच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। करेक्ट, यस और नो। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया जीन म्यूटेशन की बेटा बात, कि भाई किसी क्रोमोसोम के कोई एक स्पेसिफिक जीन के न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। मान लो बहुत सारे जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पे चेंज हो रहा है, हाउएवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्टिल मेंटेन। मान लो मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, तो मेरे 46 के 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, नंबर नहीं चेंज होगा। पर मान लो मेरे क्रोमोसोम 5 के दो में से एक आर्म डिलीट हो गया, अपर आर्म डिलीट हो गया। मान लो मेरा क्रोमोसोम 6 है, उसका लास्ट का सेक्शन ही एक और डुप्लीकेट हो गया, नया ऐड हो गया। तो अगर क्रोमोसोम में चेंज होता है बाय एडिंग और डिलीटिंग और डुप्लीकेटिंग, तो उसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो यस, नेक्स्ट इज बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या है क्रोमोसोमल म्यूटेशन? क्रोमोसोमल म्यूटेशन का बेटा मतलब होता है चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज बट नॉट द नंबर। चेंज इन द स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम विदाउट चेंजिंग द नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल डिलीशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एडिशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन एक्सेट्रा, डुप्लीकेशन, तो ये सारे टाइप के बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। अब तीसरे की अगर हम बात करें, सो थर्ड इज नोन एज जीनोमैटिक म्यूटेशन, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज हो जाते हैं। सो थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज, ये सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसको नहीं करेंगे। जीनोमैटिक का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो गया, मार्क पता लगा 46 के 45 रह गए, 40 के 23 रह गए, तो दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, either in the multiples of basic set or not, either in the multiples basic set or not। इसके बेसिस पे जीनोमैटिक म्यूटेशन बेटा दो टाइप का हो सकता है, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में हमारे पास दो कंडीशन है, बस नाम जान लो, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। करेक्ट, यस और नो। फिर आगे आते हैं एन्यूप्लॉइडी में। अब इसमें बेटा हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी होगा या हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपर मतलब एडिशन ऑफ क्रोमोसोम और हाइपो मतलब डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, है कि नहीं भाई? यहां तक सबको बात समझ में आ चुकी है? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब अगर मैं हाइपरप्लॉइडी के एग्जांपल समझने और हाइपोप्लॉइडी के जो कि हमारे सिलेबस में है, तो इन्हें हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो एक एक करके जरा हम इसके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानने वाले हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यू बेटा प्लॉइडी का मतलब होता है जब हम क्रोमोसोम का नंबर चेंज करें, या तो ऐड करें या डिलीट करें, बट नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ बेसिक सेट। मतलब पूरा एक बेसिक सेट डिलीट कर दिया, ऐड कर दिया, ऐसा नहीं, कोई एक क्रोमोसोम या तो बढ़ गया या तो घट गया। सो एन्यूप्लॉइडी मींस change in chromosome number but not in multiples of basic set। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास कंडीशन है हाइपरप्लॉइडी की, हाइपर एन्यूप्लॉइडी, एंड इसमें हम एक कंडीशन पढ़ने वाले हैं ट्राइजोमी की, ट्राइजोमी विच इज 2n+1, मतलब डिप्लॉइड सेट में एक कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, वन इज डाउन सिंड्रोम एंड सेकंड इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का बेटा मतलब होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मतलब पूरे 23 के सेट तो ठीक है, पर एक जो 21st का सेट है क्रोमोसोम का, उसमें एक और कॉपी बन गई। सो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन डाउन सिंड्रोम, एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम मेंटली रिटार्डेड होगा, जिसकी वजह क्या कह सकते हैं, रिंग बहुत ही डिस्टिंक्ट पाम क्रीज होती हैं, ब्रॉड हैंड होता है विद डिस्टिंक्ट पाम क्रीज, कुछ सिम्पटम्स हैं, यूजुअली माउथ ओपन रहता है, फ्लैट ब्रॉड हेड होगा, एंड यू कैन से द टंग इज आल्सो रोल्ड, काइंड ऑफ ट्विस्टेड काइंड ऑफ अ टंग इज आल्सो ऑब्जर्व्ड एज वन ऑफ द सिम्पटम ऑफ डाउन सिंड्रोम। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम इज मेंटल रिटार्डेशन। सो सिम्पटम्स आर ऑफ डाउन सिंड्रोम, फ्लैट राउंड हेड, open mouth, broad palm with distinct crease, and most important is mental retardation। ठीक,
अब अगर हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बेटा बात करें तो ये स्पेसिफिकली ये एलोसोमल ट्राइसोमी है, ये जैसे ऑटोसोमल है, इक्वली मेल एंड फीमेल में, बट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में स्पेसिफिकली सीन इन मेल्स जब उनके सेक्स क्रोमोसोम में एक और एक्स की कॉपी बन जाए। तो नॉर्मली क्या होता है, पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस XY, पर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की क्या कंडीशन हो जाएगी, पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस XXY। तो ये हो जाता है भाई टोटल 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे, इसमें 47 यहाँ पर भी 47 कैरियोटाइप हो जाएगा, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम बेटा बढ़ जाता है, उसकी कॉपी हो जाती है। अब ज्यादा एक्स क्रोमोसोम मतलब ज्यादा एक्स क्रोमोसोम का क्या मतलब हो गया भाई कि मेल्स में फीमेल की कैरेक्टर मतलब गायनेकोमैस्टीशिया रिपोर्ट होगा। तो इसका सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है दैट मेल्स डेवलप गायनेकोमैस्टीशिया, मेल्स में बेटा फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, करेक्ट। ये तो हाइपरप्लॉइडी हो गई। अब अगर हम हाइपोएन्यूप्लॉइडी की कंडीशन देखें जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो रहे हैं बट नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ बेसिक सेट, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज टर्नर सिंड्रोम। ये स्पेसिफिकली फीमेल्स में होता है जहां पर फीमेल्स लूजेस वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम, तो कैरियोटाइप 45 रह जाएगा, एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट कर दोगे तो फीमेल कैसी हो जाएंगी, स्टेराइल हो जाएंगी, दस फीमेल्स बिकम स्टेराइल, राइट, क्लियर और नॉट। तो ये बेटा आपको तीनों ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स याद रखने होंगे विद देयर सिम्पटम्स। डाउन सिंड्रोम पहला है, फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और फिर टर्नर सिंड्रोम। तो प्लीज इनको याद रखना, और अगर इनसे सवाल आता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू अटेम्प्ट देम। इतना ही हमें म्यूटेशन क्लियर करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यस, पेडिग्री एनालिसिस। बेहद आसान है ये, बच्चे अक्सर इससे डरते हैं पर इसमें कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा आसान टॉपिक है। करना क्या है पेडिग्री एनालिसिस में, इसका बेटा मकसद होता है, पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है ट्रेसिंग द फैमिली हिस्ट्री। अब कभी तुम डॉक्टर के पास जाते हो, कोई अपनी नई बीमारी बताते हो, तो डॉक्टर पूछता है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा को बीमारी है, तुम्हारे घर में किसी को बीमारी थी, तुमको बीमारी होगी, तो वो क्यों पूछता है भाई, मम्मी पापा दादा दादी से हमसे क्या मतलब, बिल्कुल मतलब है, क्योंकि जो हमें जेनेटिक मटेरियल मिला है जिसकी वजह से हम ऐसे हैं, वो तो हमें हमारे पेरेंट्स और उनको उनके पेरेंट्स से मिला है। सो समवेयर वी ऑल आर रिलेटेड। आज तुम्हारे पास जो भी जीन्स हैं, इट्स बिकॉज ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सो एवरीवन हैज अ फैमिली हिस्ट्री। और कभी कोई ऐसी डिजीज होती है जो फैमिली में आ जाती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन इसी माध्यम से, रिप्रोडक्शन के माध्यम से पास होती रहती है। तो लोगों को अक्सर चिंता होती है, मान लो कोई भाई खतरनाक बीमारी है फैमिली में, जैसे हीमोफीलिया मान लो, तो कोई नया कपल है जिसका बच्चा होने वाला है, और उसको पता है कि भाई मेरी फैमिली हिस्ट्री में हीमोफीलिया जैसी बीमारी है, तो मेरे बच्चे में आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो फिर वो डॉक्टर को पूछेगा, जेनेटिक काउंसलर्स को पूछेगा कि भाई बताओ मेरी ये फैमिली हिस्ट्री है, तो बताओ कितने परसेंट चांसेस है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा है तो मैं क्या प्रिकॉशन लूं कि भाई मेरा बच्चा ठीक तरीके से पैदा हो जाए। तो इस पूरे जो डॉक्टर जो एनालिसिस करेगा, जो फैमिली हिस्ट्री देखेगा, जो परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग में आई हुई डिजीज को ट्रेस करेगा, उस पूरे चार्ट को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। सो पेडिग्री एनालिसिस इज सिंपली ट्रेसिंग द फैमिली हिस्ट्री इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सम ऑफ द अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, करेक्ट, यस और नो। अब कुछ सिंबल्स होते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस के वक्त यूज करते हैं, तो वो मैं आपको सिंबल्स भी बताऊंगी और डिजीज के बारे में भी हम एक एक करके बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ सिंबल्स की बात करते हैं। सर्कल का बेटा मतलब होता है फीमेल, अगर सर्कल के अंदर हम डार्क कर दें तो मतलब ये डिजीज्ड फीमेल है भाई, इसको कोई ना कोई बीमारी है। डब्बे का मतलब होता है मेल, यही डब्बा अगर हम कलर कर दे मतलब डार्कन कर दे तो जैसे हमने फीमेल में देखा मेल भी डिजीज माना जाएगा। अब अगर एक सर्कल और एक डब्बे के बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी है तो ये लाइन दिखाती है ये मैरिज लाइन है बेटा, ठीक। अब अगर एक के बीच में हमने दो लाइनें ड्रॉ कर दी है, इसे बोलते हैं कॉन्सैगुइनस मैरिज, मींस मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, जो मुस्लिम्स में ज्यादा ट्रेंडी है कि चाचा का बेटा ताई के बेटी के बीच में शादी हो गई, सो दे आर रिलेटिव्स बट स्टिल दे आर गेटिंग मैरिड, सो दिस इज नोन एज मैरिज बिटवीन, यस, क्लोज रिलेटिव्स, इसे हम कॉन्सैगुइनस मैरिज कहते हैं। अब मैरिज लाइन के साथ अगर एक और सर्कल या रेक्टेंगल दिखा दे तो ये बेटा ऑफस्प्रिंग हो गया कि भाई ये इन दोनों, ये वाइफ हो गई, हस्बैंड हो गया, इनका बच्चा हो गया। तो इस तरीके से हम फैमिली ट्री को जब ड्रॉ करते हैं तो हम इन सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। तो बेटा आपको सारे सिंबल्स पता होने चाहिए, तभी आप पेडिग्री चार्ट को अच्छे से ये एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। अब बेटा दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक इनहेरिटेबल, एक नॉन इनहेरिटेबल। तो अभी जो आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखे ना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, करेक्ट। पर जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जिन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये बेटा इनहेरिटेबल होते हैं, करेक्ट। तो अब हम डिसऑर्डर्स को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। Let's divide disorders into two categories as Mendelian disorders which can be inherited and second are chromosomal disorders which arises due to mutation। जो भी हमने बात कर ली टर्नर, क्लिनफेल्टर वगैरह, म्यूटेशन की वजह से आया है। मेंडेलियन में बेटा हमारे पास दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अब वो जीन जिसमें डिफेक्ट आया है या तो ऑटोसोम पे होगा या वो सेक्स क्रोमोसोम पर होगा। अगर वो ऑटोसोम पे है तो उसे ऑटोसोमल कहते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों मेल फीमेल में। पर अगर सेक्स क्रोमोसोम पे है या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा तो फिर वो अकॉर्डिंगली मेल में या तो ज्यादा होंगे या फीमेल में ज्यादा होंगे, राइट। दे कैन बी आइदर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में क्या हो गया भाई, डिफेक्टेड जीन इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम जिसकी वजह से does equally distributed in both the sexes, क्योंकि हम सबके पास ऑटोसोम्स तो बेटा बराबर होते हैं ना। पर अगर हम सेक्स लिंक की बात करें तो या तो वो एक्स लिंक्ड होगा या वाई लिंक्ड होगा। वाई लिंक डिसऑर्डर्स, वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ मेल के पास है तो वाई के जीन भी सिर्फ मेल के पास है, तो भाई ये डिसऑर्डर्स तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में दिखाई देंगे। एक्स क्रोमोसोम मेल के पास एक है, फीमेल के पास दो है, तो यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो एक्स क्रोमोसोम का क्या मतलब हो गया भाई, जीन डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, दस इक्वली नहीं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द सेक्सेस, करेक्ट, ठीक है बेटा। अब जीन में दो कंडीशन हो जाती है,
एक होती है रेसेसिव, एक होती है डोमिनेंट। तो हो सकता है कोई जीन डिफेक्टिव जीन तभी डिफेक्टिव है जब वो रेसेसिव स्टेट में प्रेजेंट है, डोमिनेंट स्टेट में नॉन डिजीज कॉजिंग है। तो भाई उसी हिसाब से हमारे पास फर्दर दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यहीं पे लिखना शुरू कर देती हूँ, राइट, दोनों ही ऑटोसोमल, दोनों में ही रेसेसिव एंड डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल रेसेसिव का क्या मतलब हुआ? जीन इज डिफेक्टिव, जीन इज डिजीज कॉजिंग व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इट्स रेसेसिव स्टेट। जीन इज डिजीज कॉजिंग व्हेन प्रेजेंट इन रेसेसिव स्टेट ओनली। जबकि दूसरा है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये समझ में आ गया कि ये जीन तभी डिफेक्टिव है, तभी डिजीज कॉज करेगा जब वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है। सो जीन इज डिजीज कॉजिंग इन डोमिनेंट। अच्छा वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर बेटा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक्स लिंक कह सकते हैं, एक्स डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। तो आओ अब हमें कुछ डिसऑर्डर्स बेटा इनके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल या सबसे पहले सेक्स लिंक्ड की हम बात कर ले। तो हमारे पास हमें दो पढ़ने हैं बेसिकली, एंड दे बोथ आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है बेटा कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, हमारा रंगों के बीच में भेद ना कर पाना, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स लाइक ग्रीन एंड रेड। सो व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? इनएबिलिटी टू बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर, जब हम रंगों के बीच में अंतर नहीं कर पाते, में लाल और हरा ना दिखाई दे ढंग से। और ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब भाई ये तभी डिसऑर्डर आएगा जब एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज होगी और वो जीन उसके रेसेसिव स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन है बेटा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी बेटा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है जहां पे ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हो, ब्लड को क्लॉट करने के लिए बेटा 13 फैक्टर की जरूरत पड़ती है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अब अगर उसमें से कोई एक भी क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होगा तो क्या ब्लड क्लॉट करेगा? नहीं करेगा। और अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो फिर तो छोटी सी भी चोट लगेगी, वहां से तो भारी भरकम खून बह जाएगा। कभी तुमने ध्यान दिया होगा, तुम्हें चोट लगती है तो एकदम से खून बहता है, कुछ समय बाद वहां पे एक क्लॉट सा बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो वो एक हमारी बॉडी की टेंडेंसी है टू स्टॉप द अननेसेसरी लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी साइट ऑफ इंजरी। इस काम को करने के लिए 13 फैक्टर चाहिए। अब अगर कोई एक भी मिसिंग होगा तो चोट लगेगी, खून बहना बंद नहीं होगा, उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया को हम रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉयल फैमिली मतलब क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी और उनके कई सारे मेल डिसेंडेंट्स में ये डिजीज रिपोर्ट की गई है। क्लियर? सो व्हाट इज हीमोफीलिया? इट इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर वेयर one of the clotting factor goes missing, right? As a result, जिसकी वजह से बेटा blood fails to coagulate at the site of injury and there can be a heavy loss of blood. इसे हम क्या बोलते हैं? This is also known as Royals disease, क्वीन विक्टोरिया की वजह से। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है, ये बेटा दो टाइप की हो सकती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 मिसिंग है तो इसे बोलते हैं हीमोफीलिया ए, और अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 मिसिंग है तो इसे हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं और इसे हम हीमोफीलिया बी डिजीज भी बोलते हैं। तो दो टाइप के हीमोफीलिया होते हैं, ए एंड बी। 8वां क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है तो हीमोफीलिया ए, अगर 9वां क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है तो उसे बोलते हैं हीमोफीलिया बी। आगे समझ में भाई सबको कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। चलो अब आते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स की। इसमें सबसे पहला मेरे पास नाम है फिनाइलकीटोनूरिया। मैम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं जब मैम प्लियोट्रॉपी बता रही थी कि भाई वन ऑफ द एंजाइम फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रोडक्शन रुकने की वजह से कन्वर्जन ऑफ फिनाइलएलैनिन इनटू टायरोसिन स्टॉप्स। अब जब टायरोसिन बन ही नहीं रहा है तो बॉडी में ऑटोमेटिकली फिनाइलएलैनिन अक्यूमुलेट होगा और धीरे धीरे एक्सेस फिनाइलएलैनिन कन्वर्ट कर लेता है खुद को इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड, जिसकी वजह से बॉडी में मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस, लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उस ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर को फिनाइलकीटोनूरिया कहते हैं। क्लियर? यस। दूसरा भी मैम बेटा आपको पढ़ा चुकी हैं, सिकल सेल एनीमिया, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव एनीमिया। क्या होता है यहाँ पे? इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट में सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन में ट्रांसवर्जन म्यूटेशन का बेटा ये बेस्ट एग्जांपल है। करेक्ट? होता क्या है? अब देखो हीमोग्लोबिन में बेटा 4 चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन हमारी क्वाटरनरी प्रोटीन है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन है तो इसके पास 2 अल्फा की चेन है, 2 बीटा की चेन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेन्स में फर्क नहीं पड़ता, पर वन ऑफ द बीटा चेन का जो न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। वन ऑफ द बीटा चेन के 6th पोजीशन पे बेटा क्या लगा हुआ है? एडेनिन गेट्स रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, जिसकी वजह से प्रोटीन का नेचर चेंजेस फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वेलाइन। वेलाइन बनने की वजह से जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉन्केव से सिकल शेप हो जाता है। भाई जो आरबीसी का शेप नॉर्मली बाइकॉन्केव है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इट विल बिकम लाइक दिस, सिकल शेप की आरबीसी बन जाएगी और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देन एंड देयर घट जाएगी। तो होता क्या है? जीएजी होता है बेटा, बट यहाँ पे यू लग जाता है तो जो नेचर ऑफ प्रोटीन है वो भी बदल जाएगा और शेप इस तरीके से आरबीसी का हो जाएगा। ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। करेक्ट? एंड लास्ट व्हिच यू हैव टू नो इज बेटा थैलेसेमिया, लाइक दैट ऑफ अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक टाइप की क्वांटिटेटिव अनीमिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन चेन्स गेट ऑल्टर्ड। सो नॉर्मली हमें क्या पता है बेटा कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन है। अगर कोई थैलेसेमिक पेशेंट होगा तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलेसेमिया
तो उसको क्या होगा, या तो 3 अल्फा 1 बीटा चेन हो जाएगी, या फिर 1 अल्फा 3 बीटा चेन। ये तो गड़बड़ मामला हो गया। तो आरबीसी प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है। जब प्रॉपर हीमोग्लोबिन बना ही नहीं, हीमोग्लोबिन का शेप ही ढंग से नहीं बना, आरबीसी में ये एडजस्ट ही नहीं हो पाता, आरबीसी काम ही नहीं कर पाएगा, फिर बंदा एनीमिक हो जाएगा। तो कुछ ये डिसऑर्डर्स हैं जो बेटा आपको याद रखने हैं, और इसी से रिलेटेड ही बस घुमा फिरा के सवाल आते रहते हैं। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का नाम लिख लो, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। सो जस्ट आई एम राइटिंग द एग्जांपल, इसमें बेटा बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एग्जांपल इज यस, where the body gets paralyzed kind of, and नहीं भाई शरीर की मसल साथ देती है। तो बस इसी के साथ यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू एनसीईआरटी कवर किया है। एनसीईआरटी के बाहर का जानने की इस क्लास में हमें आवश्यकता नहीं थी, हमने पूरा एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करी है, फिर चाहे वो मेंडल के प्रिंसिपल्स हो, मॉर्गन के हो, या फिर पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशंस, एक्सटर्मिनेशन, हैंकिंग, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वी हैव कवर्ड एवरी सिंगल टॉपिक। होप यू ऑल हैव एंजॉयड लिसनिंग टू द लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।